व्हाट इज थैलेसीमिया? क्या पढ़ा फिर घर जाके? सो इट्स अ टाइप ऑफ जेनेटिक abnormality, जेनेटिक प्रॉब्लम, एंड इन दिस जेनेटिक प्रॉब्लम द अल्फा और बीटा चेंज में क्या मिलेगा आपको? abnormal आपको मिलेगी abnormalities, और उसी की वजह से जो एनीमिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? थैलेसीमिया। तो स्टार्ट करते हैं इन डिटेल। आई थिंक यहाँ तक आपने लिख लिया था ये। इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ hemoglobin and decreased production of globin chain, which we already discussed in the last class. Next is types. Very good. So the types of thalassemia. Thalassemia को हम बेसिकली कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? So what are the common types of thalassemia? 3 types. कौन कौन से? So the thalassemia basically divided into 2 types. Just understand the classifications of thalassemia. In thalassemia, the problem is in the alpha chain or beta chain. So if the person is having problem or abnormal hemoglobin formation due to the changes in alpha chain, that is known as alpha thalassemia. If problem is present in alpha chain, it will known as alpha thalassemia. In simple word याद हो जाएगा तो alpha thalassemia. And the problem is present in beta chain, that is known as beta thalassemia. Clear यहाँ तक? In alpha thalassemia, alpha chain abnormally formed, and in beta thalassemia, beta chain abnormally formed. Clear? On the basis of this abnormal chain formation, now this alpha thalassemia and beta thalassemia further divided into different types. If we discuss about the alpha thalassemia, this will be divided into 2 types. Thalassemia major, or first we write the minor. So thalassemia minor, but it is related to alpha, and thalassemia major. Thalassemia major. So how you differentiate the thalassemia major and thalassemia minor in alpha thalassemia? In alpha thalassemia, the thalassemia major and thalassemia minor, 2 types. So कैसे describe करेंगे हम उनको? What is definition of alpha thalassemia major and alpha thalassemia minor? Any idea? Yes. It's like alpha thalassemia is a abnormal chain formation in alpha chain of the hemoglobin. In alpha minor and alpha major, इधर आप क्या लिख देंगे? Alpha major. Understand the pathophysiology. In case of alpha thalassemia, the 4 molecules or 4 gene of the chain are abnormal. जब हम बात करते हैं alpha thalassemia की, तो कितने में abnormalities आपको मिलेगी? 4 gene के. There will be a abnormality found in 4 gene. And on the basis of this abnormality, we will describe these 2. In case of thalassemia minor, the 1 or 2 gene are abnormal. Then it is known as minor thalassemia. 1 या 2 gene abnormal है, तो 4 abnormal होंगे. उनमें से अगर 1 या 2, टोटल कितने हम मान रहे हैं कि 4 हो सकते हैं किसी भी डिजीज में जो आपकी अल्फा थैलेसीमिया कोज करेगी. Out of these 4, if only 2 is abnormal and 2 is normal, then it will known as minor. And if all 4 are abnormal, or 3 or 4 genes are abnormal, then it will consider thalassemia. Which one produce more severe symptom? Minor or major? Major. Absolutely यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है. जो 4 जीन हम बात कर रहे हैं उनमें चारों के चारों जीन क्या है? Abnormal है. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? The person will have the major thalassemia, which is alpha type. Clear? Same thing here. In this type of thalassemia, 2 genes involved in this disease. यहाँ पे कितने जीन होंगे? 2 जीन होंगे. Out of these 2 genes, it is again divided into alpha. Beta. Here it is. Beta major and beta thalassemia major and beta thalassemia minor. In beta thalassemia major, both genes are abnormal. Both gene, and here one gene is abnormal. So these are the classifications of your 4 type of thalassemia. When we are classifying the persons, different persons, the first person is saying that I am having only problem in 2 genes and that belong to the alpha chain, then I am having alpha thalassemia. Second person is saying I am having 4th normal gene and I belong to alpha, so that person is known as alpha thalassemia major. The next person came to you and tell that I am having abnormal gene in 11 number amino acid and I am having 2 abnormal gene, then we will say it is a beta chain abnormal, so we will say beta major, and in case of 1 abnormal gene, beta minor. What you find
there is one more person came to you and he started telling you a very abnormal type of story. The person is saying that I'm having problem in my hemoglobin which is related to thalassemia. In my hemoglobin there are two chain, one is alpha and one is beta, 4 chain, 2 alpha and 2 beta. Out of these two chain, if beta chain is abnormal then beta thalassemia, and if alpha chain is abnormal then it is alpha thalassemia. But that person is saying few genes of my beta chain is abnormal and few are normal, and few genes in the alpha chain are abnormal and few genes are the normal. So now in which category we will put the patient? In minor or in major or in alpha or in beta? If we go for alpha then beta is also abnormal. If we go for beta then alpha is also abnormal. So then we bring one more category for this thalassemia, and that type of thalassemia is known as thalassemia intermedia. कल बताया था वर्ड ये thalassemia intermedia, when both chain of the hemoglobins are abnormal, that is known as thalassemia intermedia. I hope you understand the classification. Yes. Next. ये हटा दे, ये लिख लिया? नहीं लिखा? ऊपर thalassemia लिखा है. Mostly today we complete this topic, this system, blood system जो है उसको हम आज complete कर देंगे. Yes. बना लिया? Yes. क्या पढ़ना है? कार्डियो. हाँ, कार्डियो से पहले करना था, बोला था मैंने. We have to complete this blood before ending the cardio. And as I told you, I am completing before ending the cardio. हाँ बिल्कुल. कार्डियो में क्या बचा है? It may be I will start the remaining part of cardio. पता नहीं. सर नहीं होंगे तो क्या करें? आपको तो कोर्स कराना है? सर ही पढ़ाएंगे. मुझे अभी बहुत सारा पढ़ाना है. ये लिख लिया हो तो आगे चलें. हटा दें. कार्डिक सिस्टम में तो एक ही क्लास कुछ बचा है शायद. 2 क्लास. डिजीज पढ़ा रहे सर? क्या कौन सी डिजीज बचा है? नहीं बचा है. इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. रिगर्जिटेशन. सर अभी आई नहीं है, तो आ जाएंगे तो मैं बात करूंगा, फिर देखते हैं. लिख ले. हटा दे. नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ. अरे लिखो रे जल्दी. कुछ भी हो जाए आज कंप्लीट करना है. एंड यू हैव टू सपोर्ट मी, तभी होगा. अदरवाइज कल नर्वस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. आज कंप्लीट नहीं हो. कल तो सर हाँ कल अभी तो टाइम है ना. ऑफ. कौन सा ऑफ है? कल तो बोला था 2 दिन में सिलेक्शन नहीं होता है. जो पढ़ा उसी सिलेक्शन होगा. तो एक दिन ऑफ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा है. और सेंटर तो सबका यही है. बाहर जाना है. अरे मेरे सेंटर से कोई मतलब नहीं है. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो विल डिस्कस अबाउट टुमारो. संडे को तो क्लास होगी, तो संडे को कौन लेगा? नहीं होगा. सो एक ही दिन ऑफ हो सकता है, या तो कल या परसों. 2 दिन ऑफ पॉसिबल नहीं है. वी आर वेरी बिजी शेड्यूल्ड फॉर नॉट सेट एग्जाम. नॉट सेट के लिए जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको हम छुट्टी ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते. आपको एग्जाम देने जाना, पर बहुत सारे नहीं जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे उनके लिए हमारे पास भी छुट्टी का प्रपोजल है ही नहीं पूरे 7 मंथ में. तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे अभी, बट कंफर्म नहीं है कि छुट्टी मेरी ओर से. नहीं आप सोचते कि छुट्टी है, कंफर्म आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कंफर्मेशन की. कल तो मोस्टली क्लास होगा, संडे को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा. तो देखते क्योंकि टाइम इन्होंने ऐसा रख दिया 2 to 4. वेरी वर्स्ट टाइम, खराब टाइम रखा, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जहाँ पंखे भी नहीं होंगे. ऑफलाइन पेपर है. सो आप अच्छे से तैयारी करके जाए. कल हमने बात ऑलरेडी कर ली है. अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और उसके साथ एक ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है. बॉल पेन वहां से नहीं मिलेगा आपको, अपने साथ सिंपल वाला ले जाना है. हाई फाई ब्लूटूथ वाला नहीं ले जाना है, नहीं तो वो उसको अलाउ नहीं करेंगे. सो ये 3 थिंग्स अलाउड होगी. आधार कार्ड, एडमिट कार्ड विद ब्लू बॉल पेन, नॉट इंक पेन. जेल पेन नहीं ले जाना है, जो आपका वो जेल वाला ऐसा आता है कत्ती निकल जाती है, वो ओमार शीट को खराब कर देता है. तो सिर्फ कौन सा ले जाना है? बॉल पेन, वो भी ब्लैक कलर. इफ यू आर ब्रिंगिंग ब्लू कलर, ओमार शीट उसको चेक नहीं करेगा. तो आप तीनों लेके जाएं. माइनस मार्किंग होगा. एज इन एडमिट कार्ड ऑलरेडी मेंशन्स देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग. कितना होगा वो पेपर मिलेगा, उस पे लिखा होगा. तो पेपर के इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे. मोस्टली 1/4 होगा माइनस मार्किंग, और अगर 1/3 है तो भी 1 लिखा होगा. तो उसके हिसाब से पेपर करें. नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लें, और वही आएंगे जो आपने पढ़ा है. ठीक है, चलिए आगे मूव करें. लिख लिया. मेरा सेंटर इधर ही है पास में ही. एक इधर यहाँ स्कूल है पास में, जहाँ पानी पूरी खाते हैं उसके पीछे है. योमित चांगीड़ नहीं है? नहीं है? है. इट्स ए गवर्नमेंट स्कूल. आप लोग बातें बंद करते पहले. सो यहाँ पे नहीं है किसी का सेंटर, नहीं, क्योंकि इनको पता है जेएनसी है पास में, तो इसलिए नहीं रखा किसी का सेंटर. रातानाड़ा में पता नहीं कौन सी स्कूल है, ढूंढना पड़ेगा. रातानाड़ा में गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पता नहीं कौन सी स्कूल है, मुझे भी नहीं पता है. तो वहाँ है सेंटर. लिख लिया. पटेल नगर नियर सर्किट हाउस रोड. मूव करें. टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया. इन टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया
The first one is alpha thalassemia. In alpha thalassemia, the 4 gene which is abnormal related to which chromosome? Chromosome number 16. यहाँ पे जो आपके अमीनो एसिड्स होंगे उनमें 4 अमीनो एसिड्स या 4 जीन में abnormalities आपको मिल सकती है. Alpha chain of hemoglobins are less, absent or abnormal. Examples like यहाँ पे कौन सा hemoglobin बनेगा? Hemoglobin H develop as when a person is missing 3 alpha globin gene. 3 या फिर 4 भी हो सकते हैं sometime अगर ये मेजर है तो. And an extremely severe form of this thalassemia is a hydrops fetalis. Is an extremely severe form of thalassemia that occur before birth. अगर बच्चे में थैलेसीमिया जो है बर्थ से पहले डेवलप हो गया इन यूट्रस इन यूट्राइन, तो उस कंडीशन में जो डिजीज थैलेसीमिया उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रॉप्स फिटलिस. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी विल डाई विद इन 1 मंथ. एक महीना भी नहीं लगेगा, पहले ही डेथ हो जाएगी उसकी. एंड इफ बेबी सर्वाइव देन यू रिक्वायर्ड एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंट करना होगा अगर इस बच्चे को बचाना है. सो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा बार बार. नेक्स्ट, सो कौन सा हीमोग्लोबिन मिलेगा आपको? टाइप एच. मेजर है तो कितने जीन में एब्नॉर्मलिटीज होगी? 3 और 4. इन अल्फा, दिस इज अल्फा, हाँ अल्फा में. इन बीटा होगा तो 2. जिनका सेंटर दूर है वो सेपरेट ट्रेवल करके बिफोर टाइम रीच करें. एंड जो बाहर सेंटर है उनके लिए बेटर है कि टाइम इवनिंग में है तो डे टाइम में है तो अच्छा है, मॉर्निंग में पहुंच सकते हैं इजीली. लाइक दिल्ली, जयपुर या जहां भी आपने सेंटर बनाया अपनी सिटी में तो आप इजीली रीच कर सकते हैं. और जोधपुर से हर जगह कनेक्टिविटी है, डोंट वरी. और बारिशें होती नहीं तो कहीं भी पानी में आप फंसोगे नहीं, डोंट वरी. कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मूव करें. नेक्स्ट, यहाँ पे चारों टाइप्स नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पे चारों टाइप मेंशंस नहीं किए, जो सिंपली बताया गया. जो मैंने 4 टाइप है वो ऑलरेडी बता दिया आपको. नेक्स्ट, ठीक है. नेक्स्ट मूव करें. नेक्स्ट इज beta thalassemia. So in beta thalassemia the abnormality present in which chromosome? Chromosome number 11. And there will be 2 gene which is abnormal. Which one is more dangerous, alpha or beta? Alpha thalassemia or beta thalassemia? Alpha, beta. So the dangerous type of thalassemia is beta thalassemia, which is more dangerous compared to alpha thalassemia. Beta chain are less in number, absent or abnormal. It is more common and more dangerous than alpha thalassemia. ये ज़्यादा common भी होता है and it is very dangerous. Beta thalassemia. It will be divided into 2 types, major and minor. क्लियर है? वो करें. सो कितना तैयार हैं आप ईएसआईसी के पेपर के लिए? अपने आप से पूछे कि आप कितने तैयार हैं, या थोड़े दिन बाद करवाएं? हैं अभी तैयार कम है, थोड़ा रुक जाओ. यस, तैयार है. हमेशा ध्यान रखें लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे फेलियर जो वर्ड होता है वो बहुत डरावना हो जाता है, बहुत डर लगता है उससे. लाइक देयर इज एन एग्जांपल. एक एग्जाम पेपर था और उसका जो टाइमिंग था वो अर्ली मॉर्निंग था. सुबह 9 o'clock जो पेपर होता है या 8 o'clock जो भी टाइम था, और उसमें जो स्टार्टिंग टाइम था वो 7 o'clock से वो एंट्री स्टार्ट होती है. सो टाइमिंग था. सेंटर जो था वो थोड़ा होम टाउन से थोड़ा दूर था. जो पर्सन जिसका एग्जाम है उठता है. एग्जाम जो था वो नवंबर मंथ में था. नवंबर इज ए विंटर सीजन, विंटर होता है तो बहुत सर्दी थी और 7 बजे वहाँ पहुंचना है तो उसके लिए 5 बजे जाना पड़ेगा. और एग्जाम का डर होता है तो पहले ही उठ जाते हो, आप सोते ही नहीं हो. सो पर्सन एग्जाम का डे आ गया, आज एग्जाम है. सुबह उठ गए. उठने के बाद में उसके माइंड से पहला थॉट क्या निकला? क्या लगता है आपको? आपका एग्जाम है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, बहुत ठंड है, वही ठंडे पानी से नहाना है क्योंकि संघर्ष के दिन है. गर्म पानी कहाँ आएगा? जब संघर्ष होता है तो पानी भी गर्म नहीं आता है, पानी भी चिल्ड जाता है. वो भी पूरी परीक्षा लेता है, देखते हैं कितना तू संघर्ष कर रहा है. तो क्या होगा बताओ? सो जवाब क्या था? जवाब जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर. हाउ मच यू आर प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम. लाइक आप में जो भी आप अपने बैठे हो इसमें से कोई पर्सन है जो टॉप करने वाला है एसएससी एग्जाम, और उस पर्सन को आप पूछोगे कि आपको क्या लगता है इतनी सर्दी है, इतना सब कुछ है, आप एग्जाम दे पाओगे? तो वो बोलेगा मैं एग्जाम में 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, एक दिन पहले शाम को जाके बैठ जाऊंगा वहाँ पे. क्यों? क्योंकि वो क्या है, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, 100% रेडी है, प्रिपेयर्ड बैठा है. लेकिन द पर्सन जिसने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है वो पर्सन क्या कहेगा? वो पर्सन कभी मना नहीं करेगा कि मुझे एग्जाम नहीं देना है. वो पर्सन हमेशा आपको बोलेगा मुझे एग्जाम देना है. मेरे को अंगूर तो खाने हैं बट अंगूर खट्टे नहीं, अंगूर बहुत ऊपर है, ऊंचे ऊपर ही तो थे अंगूर, तभी तो खा नहीं पाई. और जब नहीं खा पाई तब उसने क्या बोला? द ग्रेप्स आर वेरी सॉफ्ट एंड द लेमन इज वेरी स्वीट. हाँ, मजा आ गया, नींबू खा गया. नींबू नीचे होता है, लेमन ट्री जो होता है नीचे रहता है,
थोड़ा खाया, मजा आ गया, मस्त मेरा। और ग्रेप्स हाथ में नहीं आए तो क्या है, तो बहुत ही। सो सेम कंडीशन इंप्लीमेंट होती है कि आप सुबह उठते क्या बोलोगे, आज ठंड बहुत लग रही है, मैं इतनी सर्दी में जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, नहीं भाई मैं नहीं चल रहा हूँ। वाई? वहां पे प्रॉब्लम क्या है, सर्दी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? पानी ठंडा है, ना के जाना जरूरी है क्या? बिना नहाए भी जा सकते हैं, कोई जरूरी ना के जाना, वहां पे कोई मना कर रहा है कि ना के यहाँ एग्जाम में नहीं बैठना है? वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डर लगा है फेल होने से, देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर, एंड उस फियर ऑफ फेलियर से आपके मन में आता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और इससे अच्छा मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा। पूछेंगे क्या हुआ तो बोलेंगे इतनी सर्दी लग रही थी, मैं तो बीमार हो जाता इसलिए गया ही नहीं। बाकी तो मैं क्या करता, टॉप करता। बाकी मैं क्या करने वाला था, टॉप करने वाला था, बट क्यों नहीं गया? सर्दी पढ़ाई नहीं करी, वो नहीं बोलेंगे। वहां पे आप क्या करें, जस्ट रेशनलाइजिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को क्या करें, रेशनलाइज कर रहे हैं। तो लाइफ में कभी भी अपने आप को रेशनलाइज नहीं करना है, और वो रेशनलाइज करने वाला पर्सन था वो मैं ही हूं जो सामने खड़ा हूं, वो और कोई नहीं था। मैंने ही बोला था कि आज सर्दी बहुत है और मैं एग्जाम देने नहीं चलूंगा। इट इज एन इंसिडेंट इन 2016, 2016 का पेपर था, नॉर्थ दिल्ली एम्स का पेपर था, जिसमें 80 एमसीक्यूज आए थे। लास्ट पेपर था जिसमें 80 एमसीक्यू का पेपर था, वन लाइनर क्वेश्चन थे। और अभी मैं उसको देख के बहुत खुश होता हूं, पर मुझे पता है उस टाइम तो मैं पढ़ाई आता नहीं था मुझे कुछ। तो मैंने क्या बोला, सर आता तो सब था, ऐसा लगता था सबको कि टॉप करेगा, पर सर्दी बहुत इसलिए नहीं गया था। सो अपनी लाइफ में कभी भी रेशनलाइज नहीं करना है, कोशिश करो, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी वो पेपर देता तो शायद कुछ हो जाता, क्योंकि ऐसे वन लाइनर के क्वेश्चन थे, ऐसे छोटे छोटे इतने इतने से क्वेश्चन थे। आप कभी देखोगे पुराने ओल्ड पेपर की कोई बुक में, तो उसका पेपर में देखो 80 क्वेश्चन ये एक दो पेज में खत्म हो जाते हैं, इतने इतने एमसीक्यूज थे, छोटे छोटे वन लाइनर। उसके बाद ऐसा पेपर नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद से बंद कर दिया, उसके बाद 200 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 200। वो एक लास्ट पेपर था जब 80 क्वेश्चन आते थे, 90 मिनट का टाइम होता था, 80 क्वेश्चन आते थे, और आप नॉर्थ सेट में, नॉर्थ सेट क्या सॉरी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर। तो अपने आप को कभी भी रेशनलाइज नहीं करना है। जब हम रेशनलाइज करेंगे तो सक्सेस जो है उतनी अपने से आगे चली जाएगी। और वही हुआ 2016 से हम 2017 में पहुंच गए, एक साल डिले हो गया। अगर हम उस टाइम रेशनलाइज नहीं करते तो शायद डिले नहीं होता। तो कुछ चीजें अच्छी भी होती है, लाइक मुझे लगता है कि वो करना मेरे लिए अच्छा भी था, नहीं हुआ तो अच्छा मैं आ गया, आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, रहता तो क्या पता आप लोग होते वहाँ पे, हैं कोई और होते वहाँ पे, क्या पता कहीं और होता, मैं पता ही नहीं। तो कुछ चीजें अच्छी होती है, पर आपको कभी रेशनलाइज नहीं करना। चलिए आगे, नेक्स्ट, अदर टाइप्स, थैलेसीमिया मेजर मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ बीटा थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया मेजर अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो दोनों टाइप में होगा, अल्फा में भी होगा, बीटा में भी होगा, पर यहाँ पे हम सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, और वो हम पढ़ रहे हैं बीटा थैलेसीमिया में मेजर थैलेसीमिया। व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट? बिकॉज बीटा थैलेसीमिया इज द मोस्ट डेंजरस थैलेसीमिया, एंड इन बीटा थैलेसीमिया द थैलेसीमिया मेजर इज आल्सो नोन एज कुलीज एनीमिया। कल पढ़ाया था कुलीज एनीमिया, इसलिए इसको याद रखना जरूरी, इसलिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं एग्जांपल में। सो मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ बीटा थैलेसीमिया एंड इट डेवलप व्हेन बीटा ग्लोबिन जीन्स आर मिसिंग एंड आल्सो नोन एज कुलीज एनीमिया। सो याद रखेंगे, मेजर थैलेसीमिया इन बीटा चेन, बीटा मेजर थैलेसीमिया इज आल्सो नोन एज कुलीज एनीमिया। सो जो हमने चार टाइप लिखे थे उनमें सबसे डेंजरस टाइप कौन सा हो गया? जो 4 टाइप लिखे थे, अल्फा मेजर, अल्फा माइनर, बीटा मेजर, बीटा माइनर, which one is most dangerous? Beta major, and this also known as Cooley's anemia. If alpha and beta both are abnormal, then thalassemia intermedia. So next is thalassemia intermedia. क्लियर है? ये मूव करें, लिख लिया। नेक्स्ट, लक किस्मत पे बिलीव करते हो आप लोग? नहीं करना है, बिलीव अपने आप पे करना है? मेरा लक खराब था इसलिए एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। लक तो सही था, मैंने सही नहीं पढ़ा इसलिए खराब हुआ। वहां भी क्या कर रहे हो आप लोग, रेशनलाइज कर रहे हो, बेचारे लक को दोष दे रहे हो। और लक इज ऑलवेज गुड, वो कैसा होगा जो हम चाहेंगे, हैं? एक छोटा एक लड़का था, बच्चा आपकी तरह ही, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, बट लाइफ में उसको कुछ मिला नहीं। आई थिंक पहले भी आप लोगों को मैंने सुनाया होगा, लाइफ में उसने कुछ अचीव नहीं किया। देखो उसका लक किस्मत कितना अच्छा था आपकी तरह, आप बोल रहे हो वैसे। तो अब उसने पढ़ाई कर ली, और जो भी डिग्री डिग्री जो भी करना था सब कर लिया, पर उसके पास कुछ भी नहीं था, जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, बहुत गरीब था। सो उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि अब मैं भगवान से जाकर पूछूंगा कि मेरे अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मेरा सिलेक्शन या मेरा बिजनेस या मेरे पास पैसे मनी कुछ भी नहीं, ऐसा क्या रीजन है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? होता है मन में, आता है कभी कभी, 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं, इस बार तो करा दो, आता नहीं आता है। सो वो उसने ऐसा सोच के वो गया। भगवान जो थे वो बहुत ही दूर ऐसे ऊपर रहते थे कहीं, एक बहुत बड़ा पहाड़ हिमालय था, हिमालय की सबसे ऊपर चोटी थी, वहां पे विराजित थे आपके भगवान। वो गया, अब वो गया तो जाते जाते थक गया, जब हम चलते हैं तो थक जाते हैं, यस सर ना, थक गया। तो सोचा चलो आज यहीं सो जाते, सो जाते तो कहाँ सोए, जंगल में उधर। तो उसको पास में एक बड़ा सा राजमहल, राजा का महल होता है, वो दिखा। तो बोला आज इसमें सोएंगे। देखो उसका लक देखो कितना अच्छा लग, सो गया। और वहां जाने के बाद उसने उस राजमहल में जो माता थी, जो वहां की महारानी थी, उसको बोला कि मुझे वहां जाना है भगवान के पास, और आज मैं थक गया हूँ, मैं सुबह जाऊंगा वापस, सो जाता हूँ यहीं, तो आप मुझे थोड़ा यहाँ एक कंबल वंबल देके कोने में कहीं सुला दो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसने बोला कि आपको वहां क्यों जाना है? बोला मेरा ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे पास, इसलिए मैं पूछने जा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो बोला मैं सुला तो दूंगी, बट मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? अब तुम भगवान के पास जा ही रहे हो, तो मेरी एक राजकुमारी है बेटी, और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो साथ में ये भी पूछ के आ जाना कि मेरी बेटी की शादी कब होगी।
बोला ठीक है, मैं पूछ लूंगा, जा ही रहा हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कौन सा वजन उठा के ले जाना है इसका, या इसको कौन सा कंधे पे बिठा के ले जाना है। वो सुला दिया, सो गया और पहुंच गया वहां पे। ठीक है, सुबह हुई, उसका क्वेश्चन उसके ब्रेन में और निकल गया। आगे पहुंचा तो गंगा नदी आ गई, नदी आ गई, अब उधर जाना है लेकिन बीच में कौन है, नदी आ गई। अब नदी आ गई तो क्या करें, क्या करें। सो नदी और जो महल था उसके बीच में बहुत डिस्टेंस था। वो चलते चलते मतलब डे टाइम हो गया, मिड डे हो गया और वो थक गया फिर से। बोला अब मैं तो नहीं चल पा रहा हूँ, क्या करूं। सो उसी टाइम उसके सामने एक आदमी आता है, ऐसे वो होता है जिन वाला, ऐसे हाथ लगाते प्रकट होता है, वो आता है जादूगर। और जादूगर ने आते ऐसे चाहिए, जादूगर क्या करता था, छड़ी घुमाता था, और छड़ी घुमाते ही जो वो बोलता हो जाता था। सो उसने बोला उससे, जादूगर ने, और बच्चे ने जो है वो जा रहा था, उसने बोला कि यार भैया आपके पास तो जादू की छड़ी है, और इस छड़ी से अगर आप मुझे यहां से वहां पहुंचा दो तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। और अच्छा, मैं तेरे को वहां तक पहुंचा तो दूंगा, बट मेरे को क्या मिलेगा भाई। फिर उसने हिस्ट्री बताई कि मैं तो ऐसे वैसे गरीब वहां जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे भगवान के पास जा रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम मेरा भी करना। बोला क्या, मेरे को तेरी तरह मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत मतलब बड़ा आदमी नाम होना चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए, तो ऐसा मुझे भी करना है। तो मेरा ये सब कब होगा ये भी पूछ के आएगा, तो मैं अभी घुमाता हूँ तुझे, वहां फेंक दूंगा। बोला ठीक है। उसने ऐसे छड़ी घुमाई, वो नदी के किनारे। अब नदी के किनारे आ गया, लेकिन नदी क्रॉस करके उधर जाना है, और वो इतना निकम्मा आलसी आदमी, उससे हो ही नहीं रहा है, बार बार सहारा ले रहा है। अब क्या करे, तो वहां से नदी में से एक मछली आई है, बाहर सीधे हो, पता मूवीज में आता है पीछे तो पेड़ है उसके, मछली जैसे आगे आया सुंदरी है, वो सुंदरी बाहर निकली ऐसे। और उसने बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जाना है। तो बोला मुझे उधर जाना है भगवान के पास, पर मेरी हिम्मत नहीं है इसको क्रॉस करके जाने की, आपके ऊपर बिठा के मुझे उधर ले जाओ तो आपका बहुत ही भला होगा। बोला भला नहीं चाहिए मुझे, तो भाई क्या चाहिए तेरे को। तो बोला कि मुझे इस दुनिया में सबसे बड़ी मछली बनना है, वेल मछली होती है, उतना बड़ा बनना है, और भगवान से पूछ के आना कि मैं बड़ी मछली कब बनूंगी, अगर तू ये करेगा तो तेरे को वहां छोड़ दूंगी। अब तीनों ने कंडीशन क्या अप्लाई करी कि जैसे ही तू नीचे आएगा, मछली बोली मैं यही रहूंगी सीधी, अगर तू पूछ के नहीं आएगा तो मैं सीधा तुझे खा जाऊंगी। जादूगर ने बोला तू अगर मेरा पूछ के नहीं आया तो तुझे एक छड़ी घुमा के गायब कर दूंगा। और रानी ने बोला अगर पूछ के नहीं आया तो जेल में डाल के मार दूंगी, बंद कर दूंगी। बोला मैं मुझे क्या प्रॉब्लम, पूछ के आ जाऊंगा मैं तो सब कुछ ठीक है। पहुंच गया, वो पहुंच गया भगवान के दरबार में, दरबार लग रहा है, सारे अपने अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वहां पे टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, टीएनसी, भगवान के दरबार क्या लिखा है, टीएनसी लिखा था, वन पर्सन इज अलाउड टू आस्क ओनली 3 क्वेश्चन। एक पर्सन को कितने क्वेश्चन पूछने हैं, और उसने वो पढ़ के कंफ्यूज हो गया। बोला मेरे पास तो 4 क्वेश्चन है, एक मेरा 3 उनके, अब अगर मैं मेरा नहीं पूछूंगा तो मेरा आने का क्या मतलब निकला, और अगर मैं किसी एक का नहीं पूछूंगा तो वो तो मुझे मार देगा, खत्म हो जाऊंगा मैं। बड़ी दुविधा में फंस गया बेचारा वो, करे तो क्या करे। बोलो बताओ, आप सोचो क्या किया उसने। उसने अपना स्किप किया या उन तीनों में से किसी एक का स्किप किया, अपना स्किप किया होगा। तो हुआ क्या, उसने पूछा पहला क्वेश्चन कि भगवान जब मैं आया था तो मैं थक गया था, और मैं विश्राम कर रेस्ट करने के लिए एक महल में पैलेस में रुका था, और वहां पे राजकुमारी रानी थी, उसने मेरे को पूछा कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो उसकी शादी कब होगी, ये क्वेश्चन पहला। फिर मैं आगे आया, दूसरा क्वेश्चन था कि एक जादूगर जादू टोना करता है, और उसने पूछा कि मैं बड़ा आदमी कब बनूंगा। तीसरे पे आने के बाद वो अटक गया। अब वो सोच रहा है क्या करूं, नहीं पूछूंगा तो सीधा जाते ही वो एंगल्फ कर जाएगी अभी, और पूछूंगा तो मेरा क्या होगा फिर, मैंने तो एम यही था मैं कब सेलेक्ट होऊंगा नॉट में। तो उसने बोला भगवान अब मेरी तो वैसे ही किस्मत फूटी हुई है, मेरे पास कुछ है ही नहीं पहले से, और अभी नहीं है, नहीं पूछूंगा तो वो खा जाएंगे, वैसे ही मर जाऊंगा मैं, तो वो मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक है, रहने दो। आप तो ये बताओ वो जो मछली है वो वेल मछली कब बनेगी, बड़ी मछली कब बनेगी, ये 3 क्वेश्चन है जिनके आंसर आप बता दो। उसने बोला ठीक है भाई, तथास्तु। तथास्तु करते ही उसने आंसर दिया, भगवान ने क्या बोला कि वेल मछली जो मछली है उसको बोलना कि जिस दिन आप जो ये दाने, मछली जो है दाने देना मतलब हीरे मोती होते थे पहले, वो मछली बनाती थी, सो ये सारे मछली को बोलना ये सब त्याग कर देना, और जिस दिन ये त्याग कर देगी उस दिन वो बड़ी मछली बन जाएगी। बोला ठीक है। फिर बोला जादूगर, जादूगर को बोलना कि जो छड़ी है उसको फेंक दो, जिस दिन छड़ी का सहारा लेना बंद करोगे बड़ा आदमी बन जाएगा। बोला ठीक है। बोला राजकुमारी की शादी, रानी को बोलना जो सामने पहला मर्द आए उसके साथ शादी कर देना, हो जाएगी। बोला ठीक है। वो गया, मछली तैयार खड़ी है, क्या बोला मछली ने। सो मछली ने क्या किया, पूछा भी बता खाऊं या तुझे छोड़ूं। बोला मैं पूछ के रुक जा, क्या बताया बता। बोला जिस दिन आप ये दाने मोती हीरे जो भी है ये सब त्याग दोगे उस दिन आप क्या बन जाओगे, बड़ी मछली। बोला अच्छा इसकी वजह से मैं छोटी थी, हाँ। बोला ठीक है त्याग देती हूँ मैं। फिर मछली ने सोचा कि त्याग रही हूँ पानी में डालूंगी तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो उसने क्या किया वो सारे हीरे मोती सारे उसको दे दिए, ये तू रख ले तेरे काम आएंगे, तो अच्छा तेरे भाई काम पैसे वैसे हीरे मोती है तो पैसे हो गए, मजे आगे फुल। बोला ठीक है, उसको इतने सारे हीरे मोती हो गए, और वो मछली जैसे त्यागती है बड़ी मछली बन जाती है, वेल मछली बन गई। ठीक है, उसको उधर पहुंचा दिया उसने। आगे तैयार कौन खड़ा है, जादूगर। बोला जादूगर ने बोला भाई क्या करेगा भाई, पहले तेरे को याद अस्तित्व में रहना, तेरे को पूछा नहीं पूछा। बोला पूछा है, क्या बताया। बोला भगवान ने बोला जिस दिन छड़ी घुमाना या छड़ी का सारा रहना बंद कर दोगे उस दिन क्या बन जाओगे,
बड़ा आदमी है, इसकी वजह से मैं छोटा आदमी हूँ। हाँ, ठीक है। और उसने सोचा कि इस छड़ी को मैं फेंक दूंगा, इससे अच्छा क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ, ये आदमी इसके काम आएगी कम से कम। उसने बोला ये लो, ये छड़ी आज से आपकी, आप रखो। तो ठीक है, उसके तो और मजे हो गए। और उसने से छड़ी घुमाई सीधा राजमहल। राजमहल में पहुंचते ही पूछा राजकुमार, रानी ने पूछा क्या भाई मार दे तेरे को, या तो पूछ के आया? बोला पूछ के आया। क्या बताया? भगवान ने बोला जो सामने पहला मर्द खड़ा उससे शादी करा दो। बोला ठीक है, उस राजकुमारी से उसकी शादी करा दी, क्योंकि सामने वही खड़ा था, वही पहला मर्द खड़ा था उसके सामने। तो उसका किस्मत देखो कि वो जो बिल्कुल बेरोजगार आदमी था करोड़पति बन गया, इतने हीरे मोती आ गए, करोड़पति हो गया। और छड़ी आ गई, जहां इच्छा घुमाता है, जो मर्जी चाहे करता है, ये मेरा महल ये बन गया। और शादी भी हो गई। अब और क्या चाहिए, राजकुमार राजकुमारी से शादी हो गई, सब कुछ उसका हो गया पूरा। सो ये चीजें होती है आपकी किस्मत वाली बातें, जो सिर्फ हो सकती है एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट और काल्पनिक। ये सिर्फ काल्पनिक है, इट्स नॉट ए रियलिटी। ऐसा मुझे मेरी नानी ने बताया था, जो आपको मैंने आज बता दिया। वो तो नहीं, अब वो तो गए, वो काल्पनिक हो गए वो भी अब। बट कभी कभी आप लोगों को रियलिटी में लाने के लिए बताना पड़ता है कि सिर्फ बचपन की स्टोरियां होती थी, जहां पे हम ऐसा सोचते थे कि ये करते ही हो गया और हम खुश होते थे, बट ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे। इसीलिए लक किस्मत कुछ नहीं होता है, सब करना पड़ेगा अपने आप को। ये हाथों की लकीरों पर विश्वास नहीं करना है। होती है कि लकीरें कुछ हाथों की, तो लकीरें होती है ना, ये लकीरें आप चाहो तो अपने आप से बना सकते हो। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, और किस्मत के खेल से कभी निराश नहीं होते। विश्वास नहीं करना इन हाथों की लकीरों पे। क्यों? क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो भाई ये हाथ जो है ना, ये लकीरें जो है, ये तो हम, आप 4 दिन खेत में जाओ और वो पकड़ के, अभी सीजन चल रहा है मक्की को करने वाला, मेरे को कल ही फोन आया था मम्मी का कि कब आएगा, मेरे थोड़ा मक्की को ऐसे ऐसे करना था। मैं कहा मक्की तो ठीक है, वो पूरा ही जाएगा, फिर मक्की के साथ मैं आऊंगा। अभी चल रहा है, जब बारिश नहीं होती तो वो खुदाई, जानते हो, निराइन गुडाइन खुदाइन बहुत सारा होता है, हाँ वो चल रहा है अभी। तो उसमें पकड़ के 4 दिन ऐसे करो, हाथों में 1 4 नहीं 10 लकीरें बन जाएगी वहां पे, और वापस पास में ले जाओगे आप कभी ये लकीरों के। इसलिए लकीरें कुछ काम की नहीं होती है, ये लकीरें वकीरें सब हम बना देंगे। एक बहुत फेमस पर्सन थे, पता नहीं कौन थे, जिन्होंने कुछ लिखा था कि लग गई आग मेरे घर में तो फिर बचा ही क्या है। जब आपका घर है उसमें आग लग गई, जल गया, फिर पीछे क्या बचा है? तो उसने क्या खूबसूरत लिखा कि लग गई आग मेरे घर में तो फिर बचा ही क्या है, और बच गया जो मैं अगर तो फिर जला ही क्या है। सब कुछ अपनी मेहनत का नतीजा है, मुकद्दर अपना। सब कुछ अपनी मेहनत का नतीजा है, मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो कुछ नहीं लगा है। आ जाओ नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट इज द थैलासीमिया। बाकी वो माँ तो आपको याद ही है, माँ और बाप जब भी एग्जाम से पहले जाते हैं तो एक वो, आई थिंक बिहार का एक कोई टीचर था जो बहुत फेमस हुआ था, इसने वो लाइनें बोली थी, खान सर नहीं कोई और था पता नहीं, और उसने जो बोला था वो मुझे भी याद हो गई थी कुछ टाइम तक, अभी पता नहीं याद है नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ अगर याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ वापस, कि माँ की नींद में बसता सपना मैं काबिल बन जाऊं। याद है? ओके, उससे पहले कुछ और है। आप जो बचपन में, या जो हम सोचते थे कि दिवाली आ गई, होली आ गई, घर जाना है, वहां जाना है, ये सब सोचते थे, होता था नहीं होता था? जैसे होली आई, हम घर गर्मी की छुट्टियां पड़ती, नानी के घर वहां, ये सब। तो उसने लिखा कि आना जाना छोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके, ये जो इधर उधर आप लोग भी यही रहते हो, आते जाते नहीं हो, आना जाना छोड़ चुके, रख के दिल पे पत्थर अपने, घर का मुख है छोड़ चुके, या घर का मुख है मोड़ चुके, इसका दिल करता है यारों घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम छोड़ आए हैं घर जीवन सफल बनाने को। तो ये उसकी फर्स्ट स्टार्टिंग थी उस पोएम का, उस कविता का। फिर उसने लिखा कि माँ के नींद में बसता सपना, नींद मींस आइस, माँ के नींद में बसता सपना मैं काबिल बन जाऊं, और चिंता कर कर बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं, बाप से मेरे चला न जाता, घुटने जो जवाब दे चुके हैं। सो बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी रोज काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा के लाता है। सो उसने बहुत खूबसूरती से लिखा कि माँ और पिताजी जो आपके लिए कर रहे हैं, कि वो क्या माँ का सपना होता है कि उसका बेटा भी एक दिन ऑफिसर बन के आए, और उसकी माँ को, पिताजी जो आपके लिए अभी तक भाग रहे हैं, उनका भी सपना है कि भाई हमें भी थोड़ा बहुत कुछ तो मिले, कुछ तो करे। नेक्स्ट उसने लिखा कि छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं। कच्चा घर है, वो गाँव में होता है, वो कच्चा, तो जब बारिश आती है तो पानी नीचे आ रहा है, तो बोल रहा है कि छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मैं मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। यानी जब मैं मेरिट से बाहर होता हूं तो माता पिता क्या होते हैं, मेरे से ज्यादा रोते हैं, वो मुझसे ज्यादा तकलीफ में आते हैं, उनको ज्यादा दुख होता है। पता है तुझको, पता है रब को, पता है तुझको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कभी नहीं, और वो जीवन भी क्या जीवन यारों जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। तो बिल्कुल हम भी ठान के बैठेंगे, अभी नहीं तो कल तो करके दिखाएंगे। माना जल्दी कठिन परीक्षा, माना जल्दी कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेके दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है, कि सब्र का मैया बांध ना टूटे, सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, और बस एक दिन बाकी है मैं ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर बनके लौटूंगा। तो बिल्कुल आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर बनके आना है, फिर उसके बाद हम बताएंगे उसने नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद क्या बोला, वो सपने सारे कैसे पूरे किए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, जहां पे क्या होगा, अल्फा एंड बीटा दोनों ही चेन में क्या होगा, एब्नॉर्मलिटी, वो कौन सी होगी, थैलेसीमिया इंटरमीडिया। सो इट डेवलप बिकॉज़ ऑफ अल्टरेशन इन बोथ ग्लोबिन जीन्स अल्फा एंड बीटा।
पीपल विद थैलेसीमिया इंटरमीडिएट डोंट नीड, यहाँ ये ज्यादा मेजर सीवियर फॉर्म नहीं होता है, इसमें ज्यादा जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज नहीं होती, माइनर माइनर सी दोनों में होती है, इसलिए इसको हमने नाम दिया इंटरमीडिएट. इट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, इट्स अ लेस सीवियर फॉर्म एंड इट विल नॉट रिक्वायर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया. नेक्स्ट. मूव करें, देखिए नेक्स्ट. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ थैलेसीमिया. नहीं लिखा. नेक्स्ट. अरे लिख दिया. नेक्स्ट. Diagnosis. So we'll go for the CBC. Complete blood count. Hemoglobin level will be less and abnormal type of hemoglobin will be there. Hemoglobin electrophoresis कल पढ़ा था. RBC and sorry DNA and RNA differentiate करके हम उसका microscopic examination करेंगे. DNA testing and amniocentesis. If the suspected problem is present in the in uterine or fetus fetal problem है तो हम amniocentesis कर सकते हैं at the 16th week of pregnancy. तो आप amniocentesis करके जो fluid है उसके अंदर हम चेक करते हैं abnormal type of hemoglobin के बारे में. लिख लिया. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट और कंडीशन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड दैट इज देखिए एमनियोसेंटेसिस. तो ओबीजी पढ़ाते हैं सर. व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको एस्पिरेट करके एग्जाम करना. एंड अगर पूछे कब करना है तो आंसर इज नेक्स्ट. दिस इज द टेस्ट. नॉट सेट की तरह कुछ लग रहा है. NESTROFT. इतना बड़ा टेस्ट है, नॉट सेट से भी बड़ा है. सो दिस इज नोन एज नेक्ड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट फॉर बीटा थैलेसीमिया. सो इसका मीनिंग जो है आपको सिंपल सा दिख रहा है वैसे कि नेक्ड आई यानी विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप अपनी आंखों से आप सॉल्यूशन को देख रहे हैं और उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पर्सन में बीटा थैलेसीमिया प्रेजेंट है या नहीं है. सो क्या करेंगे देखें. दीज आर द टू कंटेनर जो आप देख सकते हैं. पहला कंटेनर और दूसरा कंटेनर दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है. जब आप दोनों टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो फर्स्ट वन जो आपको विजिबल है और दूसरा वाला जो आपको विजिबल है, एक में आपका बफर सलाइन है और दूसरे में अंदर आपने क्या किया है, डिस्टल वाटर पुट किया है. जब हम बफर सलाइन पुट करते हैं और डिस्टल वाटर पुट करते हैं दोनों के अंदर आपको अलग अलग कलर दिख रहा है. यहाँ पे थोड़ा लाइट है और यहाँ पे थोड़ा डार्क है. और अगर आप इधर जाएंगे और आप देखेंगे दोनों में एक में बफर सलाइन डाला और दूसरे में क्या डाला, डिस्टल वाटर डाला, लेकिन कलर दोनों का क्या है, सेम है. सो जब कलर के अंदर इस तरह का डिफरेंशिएशन आता है, वेरिएशन आता है, डिस्टल वाटर डालने से तो कोई कलर चेंजेस नहीं होगा, बट जब हम ये डाल के देख रहे हैं तो एक का कलर लाइट है और एक का कलर क्या है, डार्क है. ये कौन सा सलाइन है, बफर्ड सलाइन. एंड ये कौन सा है, डिस्टल वाटर. सो जब आप ये टेस्ट फर्स्ट पिक्चर्स देखते हैं तो आप बोलेंगे कि दिस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर थैलेसीमिया व्हेन देयर इज अ कलर डिफरेंशिएशन इन टू टेस्ट ट्यूब. सेम ब्लड आपने लिया दो टेस्ट ट्यूब में और दोनों में एक में क्या डाला, बफर सलाइन, दूसरे में डिस्टल वाटर, और दोनों में कलर अलग अलग है तो वो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव. एंड व्हेन कलर इज सेम विद both things like buffer saline and distal water आपने देखा दोनों में कलर सेम है तो फिर आपके पर्सन में आप क्या बोलोगे, there is no thalassemia is present. So this test is known as NESTROFT. याद रहेगा? यस. क्या यूज करते हैं, बफर सलाइन एंड डिस्टल वाटर विद पेशेंट सैंपल, और आपको दोनों को मिलाना है और फिर टेस्ट करना है. कलर डिफरेंस आता है तो टेस्ट इज पॉजिटिव एंड कलर इज सेम देन टेस्ट इज नेगेटिव. दिस इज फॉर बीटा थैलेसीमिया. मूव करें. So in beta thalassemia, we will go for a simple test. Just take the sample of the patient, put into test tubes. In one test tube, distal water. In another test tube, buffer water. If the color is same, test is negative. If the color is different, one is light and one is dark, then the test is positive for beta thalassemia. Next. Next is the management. What is the management? क्या मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पे? So यहाँ पे अगर हम प्रॉब्लम देखें तो इन दिस कंडीशन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, कम हो रहा है. लेस अमीनो एसिड जो हम बात कर रहे हैं, बीटा चेन अल्फा चेन की बात कर रहे हैं, वो फॉर्म क्या हो रही है, कम हो रही है, और उससे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. एंड इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर आयरन टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी. पर्सन विल सफर विद आयरन टॉक्सिसिटी बिकॉज लेस अपटेक ऑफ आयरन इज देयर. आयरन का पर्सन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में यूज नहीं कर रहा है तो आयरन का लेवल बॉडी में क्या मिलेगा, ज्यादा.
जब आयरन ज्यादा होता है तो फिर आयरन को हमें हटाना मस्ट है, तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट करेंगे? आयरन का एंटीडोट क्या है? डेफ्रोक्सामाइन इज एन एंटीडोट फॉर आयरन, सो वी विल गो विद दिस द चिलेसन थेरेपी. व्हाट इज चिलेसन? चिलेसन मींस हिंदी में बोले तो चिपकने वाला, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग, चिपका देता है. आफ्टर giving this chilisan therapy, the iron will bind with defloxamine and they will form a soluble complex which is easily soluble in water and easily move out from the body. So we will give chilisan therapy as oral deflixolone. ये तो ब्रांड नेम है. ड्रग का नेम क्या है? डेफ्लोक्सामाइन. This is a drug. This is a brand name. Defloxamine or dapropron. Both are the drug which is used for the iron toxicity. Remove the excess iron from your body. Bone marrow transplantation because of abnormal cell is formed by the bone marrow. So bone marrow को हटाके आप क्या करें? नया bone marrow डाल दें. And the next one is stem cell transplant. Both are same. It's right, same thing है. Bone marrow transplant, stem cell transplant. Both are same or different? अलग अलग है. Same है. क्यों? Bone marrow is different and stem cells are different. Then same कैसे हुआ? When you are transplanting bone marrow, what you are giving to the patient? Bone marrow or stem cell? Then why it is known as bone marrow transplantation? So both are the same thing. Stem cells are present in bone marrow. So we will aspirate the bone marrow. We will filter all the stem cells from the bone marrow with a plasmapheresis machine, and the person will receive the stem cells only. Person will not receive any bone marrow. Person क्या receive करता है? Stem cells. So we only harvest the stem cell and give to the patient. So this procedure in actual word अगर हम बात करते हैं procedure क्या है? Stem cell transplantation. It is not a bone marrow transplantation. It's a stem cell. पर old time से जो नाम था वो ये था पहले. अब इसका नाम क्या कर दिया गया? Stem cell transplantation. So ये both are the same thing. Stem cells और bone marrow. Then the temporary management is blood transfusion. Every week आपको क्या करना पड़ेगा? Blood transfusion करवाना पड़ेगा. मूव करे. बहुत प्रॉब्लम्स होती है जब आप लोग बाहर रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं. होती नहीं होती है? क्या नहीं होती है? कंपेरिजन टू हाउस होम, अपने घर की बात कर रहा हूँ मैं. मैं तो पर्सनली बहुत फील करता हूँ. मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, फिर भी लगता है वहाँ होता तो अलग होता है. वहाँ और अलग माहौल है नहीं है. सो ऐसे ही किसी परेशान विद्यार्थी ने क्या लिखा, स्टूडेंट ने, आप ही में से किसी ने लिखा, अपनी माँ को एक लेटर लिखा. माँ के लिए क्या लिखा? लेटर लिखा, और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स गिनाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है. तो उसने लिखा कि नींद बहुत आती है माँ, पढ़ते पढ़ते. आती नहीं आती है? नींद बहुत आती है पढ़ते पढ़ते माँ, तू होती तो कह देता एक कप चाय बना दे. सच में थक गया हूं मैं. अरे सुन लो पहले. थक गया हूं मैं हॉस्टल की चार दीवारी में. कैद हो गया हूं मैं हॉस्टल की चार दीवारी में. माँ तू होती तो कह देता जरा बाहर घुमा दे. आगे लिखा कि माँ थक गया हूं मैं जली रोटी खा खा के. थक गया हूं मैं हॉस्टल की जली रोटी खा खा के, तू होती तो कह देता पराठे बना दे. कितने आपके अंदर वो. हाँ माँ. नेक्स्ट, बहुत दूर चला आया हूं घर से माँ, बहुत दूर चला आया हूं मैं घर से, तेरे सपनों की जो परवाह ना होती तो कब का चला आता माँ. सो बस हम यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सिर्फ किस लिए कर रहे हैं? अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए. तो बस उनके सपने पूरे हुए तब तक आपको ये सारी संघर्ष करने हैं, तक चाहे थक जाए हॉस्टल में, जली खा जाए, जो भी मिले लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. जो ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यस और नो. बाद में माँ आपके साथ ही रहेगी. सो ये तो लाइफ है, चलता रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ. हॉस्टल की लाइफ भी होनी चाहिए. लाइफ में हर ऊपर और नीचे आपको पता होना चाहिए, फील होना चाहिए लाइफ में. और यहाँ तो फिर भी ठीक है, आप कुछ ऐसी जगह भी जाओगे, कुछ हॉस्टल जैसे भी होते हैं, जाओगे तो पता चलेगा और भी मजा आता है वहाँ पे, है ना. सो चलने दो जैसा चल रहा है, बस संघर्ष करते रहो. जब सपने पूरे हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा. सब जली हुई रोटी हट जाएगी और फिर सोने वाली रोटी आएगी, बढ़िया बढ़िया है. बाद में भी वही जली रोटी आएगी, वो जली हुई है, वो सोने से बना के नहीं देगा कोई आपको. यस, समझ गए? चलिए आगे. नेक्स्ट. ओह, दिस इज द रॉयल पर्सन आ गया हमारे स्क्रीन के ऊपर. सो next disease, very interesting disease. I personally like this disease very much. Why? Because this is the disease which is known as hemophilia or the royal disease. और इस डिजीज की अगर हम बात करें तो ये डिजीज जो है सबसे पहले डिस्कवर जब हुई, पता जो चला in 1837, जो ये डिस्कवर हुई थी वो किसमें हुआ था? क्वीन विक्टोरिया. द लेडी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वीन विक्टोरिया, ये जो लेडी थी इसके अंदर डिजीज का सबसे पहले पता चला. इसलिए इसका नाम है रॉयल डिजीज. रॉयल लोगों की डिजीज है, छोटे मोटे होती नहीं है, रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करती है. सो इट इज नॉट ट्रूथ, ये सच नहीं था. ये डिजीज तो दूसरों में भी प्रेजेंट थी, बट दूसरों को बेचारों को पता कौन लगाए? ये तो रॉयल थी, इसके थोड़ा ऐसे कुछ हो जाए तो ये कैसे हो गया? आपके 50 लोग आ जाएंगे वहाँ पे, और एक बेचारा गरीब आदमी को जो है उसे है कुछ नहीं रहता. तो उनके बेचारे रॉयल डिजीज का, उनके कोई डिजीज पता नहीं चलती थी. तो आजकल करंट टाइम की अगर हम बात करें, सो वी आर वेरी इजीली से कि तो हार्ट अटैक से मर गया. देखा है गांव में कभी किसी की डेथ हो जाती, सडनली इसको हार्ट अटैक आ गया. इवन एल्ड पर्सन, हाँ इसको हार्ट अटैक आ गया. उनको पूछो हार्ट अटैक क्या होता है, दे डोंट नो अबाउट हार्ट अटैक. पहले भी डेथ होती थी, एंड इन प्रीवियस टाइम आल्सो पर्सन इज डाइंग ड्यू टू हार्ट अटैक, बट इन ओल्ड टाइम पीपल डोंट नो अबाउट हार्ट अटैक. वो जानते नहीं थे कि हार्ट अटैक कुछ होता है. ऐसे हो गया, बस भगवान की इच्छा थी, गया. यही था, वहां भगवान की इच्छा थी पहले. अब आजकल भगवान की इच्छा नहीं है, आजकल हार्ट अटैक आ गया. इसको तो शुगर था इसलिए मर गया. शुगर क्या था? कम खाता पहले, यही होता.
सो डिजीज पहले भी होती थी, पर पहले आइडेंटिफाइबल नहीं थी, आइडेंटिफाई नहीं थी। आज भी कोविड होता है, कोरोना सबको होता है आज भी, लेकिन आजकल कोई पता नहीं लगाता है, किसी का टेस्ट नहीं कराते, इसलिए हम बोलते नहीं कि इतने कोविड सारे। जो पहली बार आया तो गिन रहे थे, इंडिया में आज 7वां केस बीकानेर के इस गांव में मिला है, सबकी नजर है 7वां, अब मेरा नंबर आएगा, यही सोच रहे थे हम घर बैठे बैठे सोच रहे थे अब मेरा नंबर आएगा ड्यूटी पे, पेशेंट बढ़े नहीं, अब मेरा नंबर आने वाला है। रोस्टर बनता था ऐसे, तो पेशेंट जब स्टार्टिंग में बहुत कम पेशेंट थे तो कुछ नहीं करना था, जाके सो मजे से होटल में रहना, वही खाना मस्त था, कुछ नहीं करना था। फिर पेशेंट आए ऐसे और फिर लगा अब हम जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो एक प्रॉब्लम फेस थी तो चली गई, हो गया, सब क्रॉस कर दिया। अब ये थोड़े दिन पहले कुछ बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीजें, कोविड कोरोना वायरस से हार्ट अटैक होता है, ये होता है, साले आधे अधूरे नॉलेज रखिए। कोरोना वायरस से क्या हो रहा है, वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है। अरे इंडिया के कितने 70-80% लोगों को वैक्सीन लगी, क्या मर गए सारे 70-80% लोग हैं? वो नहीं लगेगी तो भी मरेंगे। अगर ये कोरोना नहीं आता तो भी इतने के इतने लोग मर जाते। ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद था कोविड के अंदर, एक भी सड़क दुर्घटना से डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ नहीं हुई, एक साल में हुई क्या उस टाइम? नहीं हुई। और वो सारे किससे मरे? कोरोना से। इक्वल हुआ, बराबर हुआ, कोई डेथ रेट नहीं बढ़ी वहां पे। डेथ रेट अभी भी सेम है। परसों 4 लोगों 3 लोगों को मार दिया घर में घुस के, कुल्हाड़ी से देखा होगा आप लोगों ने। अरे तो वो भी तो मौत ही है, वो नहीं है मौत, कोविड से 4 डेथ हो गई, मतलब कोविड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इससे प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है, सब कुछ सेम था, हर चीज आपको घर बैठने के लिए मजे से बैठो, देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं, घर पे बैठ के कुछ क्या बना रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, और रामायण पूरी के पा रही है, तो वही देख रहे सारे, तो मजे करो। और हम जैसे कुछ नहीं करना था, घर पे बैठे बैठे 1 तारीख को सैलरी आ रही है, खर्च करें तो कहाँ करें, बाहर तो जाने दे नहीं रहे, कहाँ जाए। सो हम सोचते जो है, जब हम डिजीजेस के बारे में सोचते तो इसके बारे में सोचते इसका नाम आता है, क्यों भाई पहले नहीं होती थी दूसरों में थी, पर पता किसी में नहीं चला। चलो कोई नहीं, अब इसी को रखते हैं, अपन क्या करें, इसको ही देख लेते हैं, हीमोफीलिया कहा जाता है, हीमोफीलिया। So hemo means blood and philia means love. So this is a disease. Hemophilia is a disease in which the person who is suffering from the disease, like this lady suffering with hemophilia. So this lady love to blood. इस लेडीज को किससे लव था? ब्लड से। इसको ऐसे करती खून, हाँ खून आ रहा है, रुकता नहीं था इसका खून, बहुत प्यार था इसको, इसलिए खून रुकता नहीं, हमेशा देखती रहती, हाँ मेरा खून आ रहा है, आने दो, रुकने वाला है नहीं वैसे भी। सो द नेम ऑफ हीमोफीलिया जो यहाँ पर रखा गया, उसका मीनिंग क्या है? द पर्सन इज हैविंग एक्सेसिव ब्लीडिंग बिकॉज द एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, एंड उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी तो उसको क्या है? ब्लड होता है। जैसे किसी ने, हम देखते हैं लाइक आजकल ऐसा हो गया, खून सर्जन होता है या फिर जो ओटी में काम करते हैं उनके हाथों पे खून नहीं लगते तब तक उनको खाना नहीं पता है, वो देखा कभी ऐसा? इट्स ए कॉमन साइकोलॉजी हो गई है। जो लोग सर्जन होते हैं या लाइक सर्जरी करवाते हैं, जैसे मैं स्क्रब नर्स, मोस्ट टाइम स्क्रबिंग इन द केसेस, तो कभी कभी ऐसा जब स्क्रब नहीं होता लगता आज तो कुछ किया ही नहीं मैंने, आज हाथों पे जब वो खून नहीं आएगा ना तब तक हाँ मजा नहीं आया आज तो। सो एक बार जाकर तो ऐसा हाथ डाल के ही जाते हैं, चलो एक बार तो नहीं हुए तो देख लेते हैं क्या चल रहा है, होता है सेम ऐसा। इस कंडीशन में क्या हो गई है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और खून आएगा ऐसे बाहर, ब्लड, और उससे डिजीज का नाम क्या रखा गया? लव टू ब्लड, हीमोफीलिया। यस। और आज एक केस था, द पेशेंट, द लेडी, it's approximately I think 56 or 54 year old lady, and that lady is presented to the OPD with the complaint of chief complaints are abdominal pain, fullness of the abdomen, abdominal pain and lack of appetite. These are the complications which the lady is having. After the ultrasound and CT scan with जो diagnosis that is the patient is having CA ovary cancer ovary, and we planned for the exploratory laparotomy, total abdominal hysterectomy. So hysterectomy का plan किया गया. Now in the morning at the 9 AM we open the abdomen, open की abdomen को, and when we open the abdomen what we see? There is a tumor. And the weight of the tumor is 16 kg. It's a 16 kg huge. मैं उठाया ऐसे, मेरे से उठाया हाथ से 16 kg. It's a 16 kg tumor. Only in one ovary, not in both ovaries. In only in ovary, not in uterus or in other ovary. It's in one ovary, which is 16 kg. उसका weight, हम जब भी कोई ट्यूमर आता है तो उसका weight करते हैं नॉट। तो पहले मेरा weight किया 72 kg, then फिर ट्यूमर को उठाया मैंने से, फिर वापस weight किया, then पता चला 88 kg। कितना हो गया? It's a 16 kg ट्यूमर। 16 किलो का ट्यूमर लेके वो ऐसे वेल्डिंग गेट के साथ चल रही है, उसको लगता है मैं तो अब मोटी हो गई हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। दिस इज वेल्डिंग गेट, सुना है? सो इतने अनअवेयर हो सकते हैं लोग, इतना बड़ा ट्यूमर भी वो स्लिम फिट हो, उसका सुचर करने से वो दुबली ऐसे हो गई, वापस नॉर्मल गेट आ गया, उसका सारा पेट खत्म हो गया उसका। एक दिन में मोटापा घटाओ अभियान चला उसका और 1 घंटे में सारा मोटापा खत्म हो गया उसका। सो अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयर नहीं है तो पता कैसे चलेगा? पर ये अवेयर थी इसलिए पता चल गया कि इसको हीमोफीलिया है। बाकी लोग अवेयर नहीं है इसलिए उनको पता नहीं चलता। चलिए आगे, मैं वो इमेज दिखाऊंगा जब मैं आपको ऑन्कोलॉजी पढ़ाऊंगा, जब सी ओवरी दिखाऊंगा तब डिस्प्ले करूंगा इमेजेस। हाँ, द नेक्स्ट द ब्लीडर, द रॉयल डिजीज, बिकॉज़ दिस लेडी बिलोंग टू रॉयल फैमिली, लेडी बिलोंग टू रॉयल फैमिली or king family, and that's why it is known as royal disease. And in this disease the person will have continuous bleeding, and that's why it is known as bleeders disease. Continuous क्या होता है? Bleeding होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? Bleeders disease. Queen Victoria of England, who ruled from 1837 to 1901, is believed to have been carrier of hemophilia B or factor 9 ये जानते हो आप? This is the 9 होता है, अरे जानते हो नहीं जानते हो? 9 deficiency. It is very easy to remember. ये 2-3 तो सिंपल होते हैं, ये 3 तक बहुत इजी होता है, कंफ्यूजन इसके बाद स्टार्ट होता नहीं होता है। सो 3 के बाद क्या आएगा? 4 से पहले किसको समझना है? 5 को। 5 का मतलब ऐसे, इससे कम वाले को इधर रखना है, ज्यादा वाले को उधर रखना है। कम वाला क्या होता है? 4, ये 4, ज्यादा वाला 6, ये 6, याद हो गया? 4 5 6, फिर आता है 7, तो इसी के आगे चलेगा ये 7, फिर आता है 8, यहां तक तो ठीक था। ये 5 के आगे 1 लगा दिया, 5 के आगे 2 लगा दिया, 5 के आगे 3 लगा दिया, अब आएगा 9। 9 से पहले क्या याद करो? 10, 10 से कम 9, 10 से ज्यादा 11, बस इसके आगे वाला सब सेम, इनको लगाते जाओ बनता जाएगा। ये हर लाइन में आएगा। 11 के बाद 12, 13, 14, 15
वन डे जब हम ऐसे एंट्रीज करते हैं तो मैं एंट्री कर रहा था बैठ के और कुछ बोल रहा था, तो मैं आई विल ऑलवेज राइट इन दिस रोमन लैंग्वेज ओनली, मैं इसी में लिखता हूँ क्योंकि आदौ समझ नहीं आता बाद में। सो मैंने लिख दिया ऐसे 68 थे, मैंने 68 तक लिख दिया पूरा। अब वो देखा ये क्या, उनको पता ही नहीं चल रहा, उनको काउंट मैं कितने बताओ, बोला सर ये तो कितना लिखा आपने पता नहीं चला, काउंट करो। फिर वो वापस 1 2 3 सारा काउंट कराएगा, उसको उसमें पता नहीं था लैंग्वेजेस में। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए, बेसिक चीज होती है अपने इसको चलाने के लिए। नेक्स्ट आगे क्या है, नेक्स्ट वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इट इज द डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 17th ऑफ अप्रैल। हर साल 17 अप्रैल को हम 17 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। एंड इसी दिन के ऊपर हर एक डे के ऊपर एक थीम दी जाती है। लाइक इन दिस ईयर 2024 में भी हमने सेलिब्रेट किया ऑलरेडी 17th ऑफ अप्रैल को, भी 2 महीने पहले। एंड ऑन दैट डे वी गिवन अ थीम, एक दी थी, इसका मतलब क्या था, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स। थीम क्या थी, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, हर एक पर्सन के लिए इक्वालिटी है, सभी को एक्सेस मिलना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि गरीब है तो उसको नहीं मिलेगा, अमीर है तो इसको पहले मिलेगा। इट इज इक्वल फॉर एवरीवन, इक्विटेबल टू एक्सेस फॉर ऑल एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्रीडर डिसऑर्डर। जितने भी ब्रीडिंग डिसऑर्डर है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए सबके लिए एक्सेस सेम है, इक्वल है, सबको ये मिलेगा। सो दिस इज द थीम व्हिच इज गिवन ऑन द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑन द 17th ऑफ अप्रैल 2024। clear? Move करें। Next. After that we have one more disease that is known as leukemia. That is known as leukemia. Everywhere, हर जगह क्या बना हुआ है, सिटी जो है वो बनी हुई है आपके स्विमिंग पूल, और यहाँ पे सारा पानी पसीने से निकल रहा है, परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पे बीबी। स्टिल टेम्परेचर इज नियर बाय 40, इतना ही है, गर्मी खत्म नहीं होना चाह रही है। आप लोगों ने कुछ पेड़ तो नहीं करी है, बारिश नहीं करनी है जोधपुर में है? जो जोधपुर वाले उनको तो आदत है बारिश नहीं होने की, उनको पता है हमारे तो नहीं होती थी काम, हमें पता है, उनके चलता है, बट हमारे नहीं चलता है क्योंकि हमें आदत नहीं है। अब हमें भी धीरे धीरे होने लगी है, 7 साल हो गए तो। चले आगे, लिखिए याद रहेगी थीम, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 17th ऑफ अप्रैल एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट, डिजीज के बारे में कुछ पॉइंट जो समझते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक कोगुलेशन प्रोटीन्स। हमने टोटल कितने फैक्टर पढ़े थे, क्लोटिंग फैक्टर, नंबर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर इज 13, 13 थे, 13, one is absent and 12 is present in our blood, so number of clotting factor is 13. In hemophilia we discuss about 3 clotting factor, and these 3 are the factor 8, factor 9 and factor 11. These 3 are the factor which we discuss here, and on basis of this factor we divide this disease in 3 part, one by one हम discuss करेंगे आगे। Hemophilia is X linked hereditary disorder. So if a disease is X linked, it is present in male or it present in female or in both? Female, very good. So it is a disease which is present in both group, male and female equally, or sometime more in female। एक में नहीं होगा, X दोनों में होता है, कल तो पढ़ाया था। X ये क्या है, फीमेल, और ये एक्स वाई मेल, तो दोनों में होगी। बट प्रॉब्लम क्या होगी, इफ इन फीमेल इफ ओनली वन एक्स इज अफेक्टेड देन इट विल बी कैरियर, बट इन मेल वन एक्स इज अफेक्टेड इट विल बी डिजीज। सो मेल कभी कैरियर नहीं होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में मेल पर्सन इज ऑलवेज ए डिजीज्ड पर्सन। अगर हम कैरियर की बात करें तो कौन हो सकता है, फीमेल ओनली। इन मेल पर्सन मेल इज ऑलवेज अफेक्टेड पर्सन, उसको हमेशा अगर पॉजिटिव है तो डिजीज होगी, लेकिन फीमेल में दोनों हो सकता है, फीमेल में भी कैरियर और में भी अफेक्टेड। लाइक दिस लेडी इज ए कैरियर फीमेल, इट इज नॉट ए डिजीज फीमेल, इट्स ए कैरियर फीमेल। उसके जब आगे ऑफस्प्रिंग आई तो उनमें ये पता चला कि उनको ऐसे खून आ रहा है, कट लगते ही ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, सो फिर उसमें डायग्नोसिस पता चला, तो ये डिजीज है कैरियर फीमेल, दिस इज नॉट ए डिजीज फीमेल। विक्टोरिया जो है वो, हाँ ये पता नहीं क्या बना दिया यहाँ पे इन्होंने, हिल किया एक्स वाई, समझ रहे हैं आपको। नेक्स्ट, हीमोफीलिया जेनेटिक इनहेरिटेंस। सो देखो यहाँ क्या लिखा है वो समझाता हूँ फिर मैं बताता हूँ। दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल, हैज एन एक्स क्रोमोसोम विद द हीमोफीलिया जेनेटिक अल्टरेशन। दोनों में क्या है, एक में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अल्टरेशन है जिसमें हीमोफीलिया प्रेजेंट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल हैज एन अनअल्टर्ड एक्स क्रोमोसोम। सो एक में प्रेजेंट है, एक में एब्सेंट है, तो ये क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, आइदर डिजीज और आइदर कैरियर। आगे हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। तो क्या लिखा है, डायग्राम बिलो मे असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस इन हीमोफीलिया। Solid red males have hemophilia, red and blue females carry gene alteration and may also have hemophilia. अब ये कुछ समझ नहीं आया मुझे, तो आपको भी नहीं आया होगा और मुझे यहाँ ही समझाना पड़ेगा। सो इन जेनेटिक्स द फर्स्ट थिंग इज, ट्री बनाते हैं हम, तब याद रखना आपको, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम ट्री बनाते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं। सो इन आवर जेनेटिक्स देयर आर 2 सिंबल फॉर मेल एंड फीमेल। व्हेन वी आर ड्राइंग लाइक दिस, दिस इज फॉर फीमेल, एंड व्हेन वी आर ड्राइंग लाइक दिस इज फॉर मेल। ये याद रहेगा, इन जेनेटिक्स द यूनिवर्सल सिंबल। व्हेन दिस 2 सिंबल्स आर कंप्लीटली एम्प्टी, खाली है, अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है, तो दीज आर unaffected male and female. When these symbols are like this is the female and this is the male, and these are completely filled with color. So when this symbol is completely filled like this, dark color में भरा हुआ है, और ये भी भरा हुआ है, पूरा समझ लो भरा हुआ है, this is an unaffected, and this is an affected female or male. याद रहेगा। Next, in genetics when the symbol is half filled and half is unfilled, it means half is normal and half is
एबनॉर्मल, इधर से ठीक है इधर से खराब, इधर हेमोफीलिया इधर नॉर्मल, इधर कट लगाओ ब्लड नहीं आएगा, इधर लगाओ आएगा, ऐसा नहीं। सो व्हेन this half is filtered and half is normal, that is known as carrier, that is known as carrier. One gene is affected and one is normal, that is ये diagram indicate कर रहा है. Next in our genetics, this is the symbol which is present here, this is the symbol like this, so this is an indication that this is the female and this is the male, and bonding between these two person, this type of symbol is indicating that married couple, this is known as married couple, शादीशुदा है ये दोनों, लीगल मैरिड कपल है, उनके बीच में हमेशा बॉन्ड बनाते हैं. And this is one more symbol like this, these two are also married but like this is divorce हो गया. very good, शादी करा के काट दो दोनों, divorce हो गया, divorce हो गया है. क्या हुआ इनमें बताओ, ऐसा बना दिया तो क्या हो गया है. these are also married couple. in sociology पढ़ा दिया, अच्छा मैंने पढ़ाया था. in sociology we have various type of marriages, शादियां होती है अलग टाइप की. so in psychiatric there is a disease or there is abnormal condition जो आगे आप पढ़ेंगे, एंड दैट इज नोन एज इनकास्ट मैरिज. सुना है नहीं सुना, इनकास्ट का मतलब अपनी कास्ट में है ना, एक ही कास्ट में शादी कर लेना. सो इट इज नॉट दैट इनकास्ट. इनकास्ट मींस व्हेन अ मेल और फीमेल मैरिंग टू अनदर मेल एंड फीमेल एंड दीस टू पर्संस आर रिलेटिव विद ईच अदर, दे आर रिलेटिवली ब्रदर एंड सिस्टर, फैमिली में बिलोंग करते हो, रिलेटिवली वो क्या है ब्रदर एंड सिस्टर. आपने देखा होगा इन फ्यू कम्युनिटीज दिस इज लीगल, कुछ कम्युनिटीज में ऐसा अलाउड होता है, लाइक इन मामा एंड बुआ एंड ऐसा कुछ रिलेशनशिप है, उनकी बेटा बेटी शादी करा है, दैट इज कंसेंसुअल डिफरेंट, वो अलग कंडीशन है. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इनकास्ट मैरिज इससे डिफरेंट है, जहाँ पे सिंपली व्हेन द मेल एंड फीमेल बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, किसी भी रिलेशनशिप से भाई बहन लगते हैं, बुआ का बेटा फूफा का भतीजा भाभी जो भी कैसे भी है, वो भाई बहन बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे इनकास्ट मैरिज. एंड इन सम कम्युनिटी लाइक आई थिंक इन मुस्लिम कम्युनिटी दिस इज अलाउड, वन जनरेशन जो है वो हटा के बाकी दूसरी जनरेशन से वो क्या कर सकते हैं मैरिज कर सकते हैं, दिस इज लीगल इन दैट कम्युनिटी, और कुछ और में भी हो सकता है, आई डोंट नो. सो ये जो मैरिज होती है उसको हम क्या बोलते हैं इनकास्ट मैरिज. याद रहेगा. The next one is if this symbol is there, this is, ये जो था इस वाले को थोड़ा ऐसे घुमा दिया मैंने, इसको ऐसे टर्न कर दिया, ये ऐसा हो गया. क्या हो गया बताओ ऐसे करना है. When the sex of the person is unknown sex, when the sex of the person is unknown, for that we use this symbol, this is for unknown sex. ये 4 ईयर पहले एक एग्जाम आया था, ऐसा सिंबल पूछा था इट इज एन इंडिकेशन फॉर, फिर आप वहां पे आंसर है नहीं देना है, वहां आंसर लिखना है, और आंसर क्या होगा इट्स फॉर ट्रांसजेंडर और अननोन सेक्स. क्लियर. सो ये है वेरियस सिंबल्स, दे विल हेल्प अस, ये सारे सिंबल्स हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहां भी हमारी हेल्प करेंगे. सो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं. दिस इज द मेल पर्सन एंड दिस इज द फीमेल पर्सन, ओ सॉरी दिस इज द फीमेल पर्सन. जेनेटिक्स में कभी लिखते नहीं है कि ये मेल और ये फीमेल है, सिर्फ सिंबल बनाते हैं और आपको पता होना चाहिए इट्स अ मेल एंड फीमेल. इफ दिस पर्सन इज अफेक्टेड देन इट विल बी इन डार्क कलर, एंड इफ दिस फीमेल इज अफेक्टेड देन इट विल आल्सो इन डार्क कलर. दिस इज द मेल पर्सन, दैट्स व्हाई इट विल हैव X and Y, and this is the female person and it will have XX. If this male person is affected means either X is affected or either Y is affected, दोनों में से एक क्या है अफेक्टेड है. एंड अगर दोनों भी अफेक्टेड है तो भी क्या होगा डिजीज होगा. वन इज अफेक्टेड स्टिल इट इज डिजीज पर्सन, बोथ आर अफेक्टेड स्टिल इट इज डिजीज. इन फीमेल वन इज अफेक्टेड, यहां पे हमने दोनों बनाया, मतलब इसको हम क्या बनाएंगे दोनों बनाना पड़ेगा. अगर हम इसको हाफ बनाते तो हम क्या बोलते हैं इसको कैरियर. सो बोथ आर अफेक्टेड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिजीज. एंड इफ वन इज अफेक्टेड होता, अगर एक ही अफेक्टेड होता ऐसा होता तो हम इसको क्या लिखते हैं X and Y, सॉरी X and X and वन इज अफेक्टेड, इट इज ए कैरियर. क्लियर. यस याद हो गया. ये यही वहां बनाया हुआ है, और जो नीचे फोटो बनाया ब्लू वाला उसमें ऐसे बनाया कि खाली बनाया X और Y और ये XX, तो ये तो अफेक्टेड है और ये अनअफेक्टेड. क्लियर हो गया. ये समझ गए, ये यहाँ बनाया हुआ है, ये हमें फोटो वोटो याद नहीं रखने कोई काम के नहीं है. नेक्स्ट ये इनहेरिटेंस कैसे ट्रांसफर होगा इसकी हम बात कर लेते हैं. सो हम आगे डिस्कस करते हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. इनहेरिटेंस कैसे डेवलप होता है, कैसे आगे जाता है. सो दिस इज एन X एंड दिस इज द Y, दिस X इज कमिंग फ्रॉम, दिस बिलोंग टू मेल पर्सन, एंड इन दिस कंडीशन लाइक दिस मेल पर्सन इज अफेक्टेड वी विल go with this Y is affected, and here this is an X and this is X, and if this female is affected then both are affected. Clear. Yes. Now move करते हैं, बनाते हैं. This X will combine with this first X and form X X, and this will be, यहाँ से ये पॉजिटिव आया था और इधर से नहीं आया. Who is calling again and again X X and this is again. Clear. ऊपर चला गया. Y first X and Y both are affected, and here the Y again X X. Clear. So these are the 4 possible results. What possible results are there? These 2 are female and these 2 are male. In this condition both are act as a carrier female, and here both are the diseased male, not carrier, diseased male. Next one more thing, if we change this pattern, अगर मैं इस पैटर्न को चेंज कर दूं, यहाँ पे Y अफेक्टेड था, अगले पैटर्न में हम क्या कर दें X को अफेक्ट कर दें, X X and X Y and X X here both are affected. So सिर्फ इधर चेंज किया हमने, this X will combine with this and this time both are affected. Again X combined with X and both are again this is X X, then Y will combine with the X and it will be XY,
and again this will combine with X and again X and Y. In this situation, these two are the female, but both are diseased female, and here both are male, but both are, ये नहीं होगा ना इधर, male person, but again these two are diseased male because in male person one gene is enough to cause any disease. So these are the sequence जो आपको ध्यान रखना है. याद हो गया, बना लोगे इजीली. इनहेरिटेंस कैसे ट्रांसफर होता है हमने पहले ब्लड ग्रुप में भी पढ़ा था, इसे में से. ओके, मूव करते हैं, मूव करें. यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, जो पिक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर फादर इज अफेक्टेड बट मदर इज अनअफेक्टेड. तो फादर अनअफेक्टेड होगा तो क्या उसके मेल पॉप जो चिल्ड्रन होंगे उनमें कोई डिजीज होगी? फादर अनअफेक्टेड है, मेल पे कोई प्रॉब्लम होगा? बेसिकली दिस इज एन एक्स लिंक डिजीज, मोस्टली एक्स लिंक डिजीज है, सो एक्स अफेक्टेड रहेगा. और मेल पर्सन को एक्स कौन देता है? मदर और फादर. फादर कहां से एक्स देगा? फादर वाई देता है ऑलवेज मेल के लिए, मदर एक्स देता है. सो वो दोनों चाइल्ड जो होंगे अफेक्टेड फादर के, दोनों मेल में भी वो दोनों क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड रहेंगे, कभी उनमें डिजीज नहीं होगा. लेकिन डॉटर के अंदर एक्स पॉजिटिव जाएगा तो क्या रहेंगे? कैरियर. दैट इज अ कैरियर. बना लिया? अरे घर पे प्रैक्टिस करना है, यहाँ क्या बना रहे हो आप? ये देखो यहाँ पे, इन दिस कंडीशन दिस फादर इज अफेक्टेड, एक्स इज अफेक्टेड, एक्स अफेक्टेड है, मदर इज नॉर्मल. सो व्हेन दिस एक्स मूव इनटू द फीमेल डॉटर, ये हाफ क्या है? अफेक्टेड, हाफ इज नॉर्मल, मतलब दोनों ही क्या है? कैरियर. एंड इधर से वही आएगा मेल से, और फीमेल से क्या आएगा? एक्स. सो दो डॉटर जो दोनों अपने बॉयज है, सन है, दोनों क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड. कल घर वो बना के लाना इसके अलावा. नन ऑफ द सन वन छोड़ो इनको, ये क्या सन सन बनाना, क्या ये भी हटाओ, सब हटा दो, आपको बना के लाना है. क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ हेमोफीलिया. सो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कितने टाइप का हेमोफीलिया? 3 टाइप्स. मूव करें. Classifications and type of hemophilia. So on the basis of clotting factor, this is divided into 3 types. Hemophilia A, hemophilia B, and hemophilia C. A, B, and C. Hemophilia A, it is because of the deficiency of factor 8A. A means it's active. Factor 8 active deficiency होती है. Inactive का कोई काम ही नहीं है, मैं तो inactive चाहिए नहीं. So in case of hemophilia A, the factor 8A deficiency present in the person. In case of hemophilia B, the factor 9 deficiency, and in hemophilia C, factor 11 deficiency is there. तो 3 टाइप का होगा. सबसे पहला लिखेंगे आप hemophilia A और the classic hemophilia. First one is hemophilia A and the classic hemophilia. The पहला क्वेश्चन जो आता है, the most common type of hemophilia. Answer should be hemophilia A और classic hemophilia. सबसे कॉमन कौन सा है? hemophilia A. Approximately nearby in 80% of cases आपको कौन सा देखने को मिलेगा? hemophilia A. So it is the most common type, approximately in 80% cases, and it is due to the deficiency of factor 8A. नॉर्मल लेवल अगर हम फैक्टर 8 की बात करें तो इसका होता है 50% टू 150%, और ये लेवल डिक्रीज हो गया आपका, कम हो जाएगा 50% से, तो डिजीज क्या हो जाएगी? हीमोफीलिया. दिस इज द टाइप 1. याद हो गया टाइप 1? सिंपल सा है. व्हेन फैक्टर 8 डेफिशिएंसी इज देयर, इट विल कॉज हीमोफीलिया ए और द क्लासिक हीमोफीलिया. व्हेन फैक्टर 9 डेफिशिएंसी इज देयर, हीमोफीलिया बी और क्रिसमस हीमोफीलिया. सुना है? सो नेक्स्ट इज फैक्टर लिख लिया? मूव करें. The next is type 2, that is hemophilia B or the Christmas disease. In this the deficiency factor is factor 9. Factor 9 की deficiency होगी यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे? hemophilia B. And it is approximately 15 to 20% cases में आपको देखने को मिलता है hemophilia B आपका. Normal level of this factor is 70 to 120% in your blood. So this is the hemophilia B. So you can easily differentiate the type A and type B. In type A, factor 8 deficiency is there, and type B, factor 9 deficiency is there. Next, most common type is type A. The least common type is type C, which is very less bleeding cause करता है, और least type आपका रहेगा. Next, hemophilia C, it is due to the deficiency of factor 11. Mild bleeding tendency is there, and normal level is between 60 to 120%. So 50 to 150%, first जो आपने पढ़ा 8 factor का level, 70 to 150% second, or 70 to 120, and in this 60 to 120% normal level. So these are the 3 types of hemophilia: type A, type B, and type C. Hemophilia is a bleeding disorder, or hemophilia is a clotting disorder? Which type of disorder it's? Hemophilia is a bleeding disorder or it's a clotting disorder?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर? ब्लीडिंग डिसऑर्डर में ब्लीडिंग होती है, प्लेटलेट डेफिशिएंसी होती है, एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर में क्लॉटिंग की डेफिशिएंसी होती है। वेरी गुड। और कुछ? सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर? ये नहीं पता है? वी डिस्कस अबाउट टू थिंग्स, वन इज द ब्लीडिंग टाइम एंड वन इज द क्लॉटिंग टाइम। याद है? पढ़ा था? व्हाट इज ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम? क्या करें आप लोग करें? और डिफरेंस बिटवीन ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, नॉट द टाइम पीरियड। पढ़ा तो था। ब्लीडिंग टाइम मींस कट होने के बाद में कितने टाइम में ये ब्लड स्टॉप हो रहा है, दैट इज ब्लीडिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम मींस ब्लड को बाहर निकाल के वाइल में कितने टाइम में क्लॉट हो रहा है बाहर निकालने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉटिंग टाइम। As like bleeding time and clotting time are different, same the bleeding disorder and clotting disorder are also different. So I'm asking you, what is the difference between bleeding time and clotting time? Sorry, bleeding disorder and clotting disorder. इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछें है, बताओ? ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये तो होगा, कोई सा भी बाद में पढ़ेंगे। मैं डिफरेंस पूछ रहा हूं पहले। कौन बताएगा? ऐसे प्राउडली हाथ खड़ा करो, सर मैं बताऊंगा या बताऊंगी। नहीं बताएगा कोई? इट्स कंप्लीटली डिसअपॉइंटिंग। मेरे को डिसअपॉइंटमेंट कर रहा है तो। बताओ रे, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई, चलो कौन सा डिसऑर्डर हुआ? क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्या उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है? तो फिर कैसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर? ब्लीडिंग नहीं है, हैं? ओके, सो देयर इज अ ह्यूज कांसेप्ट बिहाइंड दिस ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। आप लोग सोचें, जब तक ये हीमोफीलिया जो हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट होता है, तब तक अगर किसी के माइंड में आता है तो क्या करना है? ऐसे हाथ खड़ा कर देना है, तब तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? नहीं तो मुझे तो बताना ही है फिर बाद में। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर गेटिंग हीमोफीलिया? सो रिस्क फैक्टर इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम and heredity is the risk factor. If mother or father is already suspected of having case of the hemophilia, then their offspring is also suffering with this problem. So the first one is genetic problem, genetics. X-linked recessive transmission in male, the female are carrier. ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मेल में जाएगा तो क्या करेगा? डिजीज, लेकिन फीमेल में जाएगा तो कैरियर। फीमेल फिर भी बच जाएगी, हम तो फिर भी क्या है? कैरियर ही है, डिजीज नहीं है हमारे में। लेकिन मेल बेचारा क्या होगा? डिजीज पर्सन होगा। मेल में डिजीज कब होगी? मदर अफेक्टेड होगी तब या फादर अफेक्टेड होगा तब? व्हेन मेल पर्सन कब अफेक्टेड होगा? डिजीज कब होगी? मेल चाइल्ड के अंदर, व्हेन मदर इज अफेक्टेड और फादर इज अफेक्टेड। सो मेल चाइल्ड विल हैव दिस डिजीज ओनली व्हेन द मदर इज अफेक्टेड, बिकॉज़ इट्स अ टाइप ऑफ X-linked disease, and in male person X is coming from mother only, not from the father. That's why this disease is only possible when present in mother, and बेबी जो हो रहा है वो मेल बॉय है, मेल बेबी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिजीज होगा। लेकिन फीमेल के अंदर चांसेस क्या है? ज्यादा से ज्यादा कैरियर के। क्लिनिकल फीचर्स, मूव करें, मूव करें। देखो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे X and Y and X and X, if father is affected, this X is affected. If mother is affected, बहुत X will affected, तभी मदर में अफेक्ट होगा। So जब फादर अफेक्ट होता है तो ये X सिर्फ किसमें जाता है? फीमेल में जाएगा। दोनों क्या होंगे? फीमेल होंगे। और वही तो बनेगा X के साथ X यानी मेल बॉय, तो बॉय होगा यहाँ पे, मेल चाइल्ड होगा। दिस विल ऑलवेज बी, these two are affected, these two are unaffected. So बच्चों के अंदर, बॉय के अंदर कोई डिजीज नहीं होगा अगर फादर अफेक्टेड है। तो ये डिजीज सिर्फ किसमें होगा? फीमेल में, ऐसे कैरियर होगा। लेकिन अगर डिजीज किसमें है? मदर में है, फादर में नहीं है। अगर ये डिजीज फादर में नहीं है, किसमें है? मदर में है। देन दिस X यहाँ आएगा, इधर से यहाँ आएगा और इसमें अफेक्ट करेगा। ये X यहाँ से यहाँ आएगा और इसको अफेक्ट करेगा। ये वही के साथ X इधर आएगा, इसमें डालेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। सो जब मदर अफेक्टेड है तो दोनों मेल बेबी क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं, और दोनों फीमेल क्या होती है? कैरियर। बट जब फादर अफेक्टेड होता है तो सिर्फ फीमेल कैरियर होती है, मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेमोफीलिया। Clinical features, first is abnormal bleeding, because person is having deficiency of various clotting factor, and because of deficiency, if due to any reason cut is there, then person will have abnormal bleeding, continuous bleeding. Bleeding के अंदर stoppage नहीं होगा, coagulation नहीं होगा. Then epistaxis, it is the nose bleeding. Epistaxis means nose bleeding present in hemophilia A. When a person is suffering with epistaxis, the bleeding is occur from which area? कहाँ से bleeding होती है nose में? There is a specific plexus formation. Plexus जानते हो? Plexus means bunch of capillaries, which is known as plexus formation. So in our nose, there is a specific plexus which is known as Kesselbeck plexus, जो आपके nose के just last upper part में present होता है यहाँ पे, और उसी part की जो vessels की जो layer होती है वो बहुत thin होती है, and it is very easily rupture in minor injuries cases, like you are doing something in nose finger test and sometime finger will go suddenly go inside and move out and you will start bleeding. होता है जब गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी से हुई आप अंदर फिंगर और फिर bleeding start. And even not due to this mechanical injury, sometimes it can occur spontaneously, like due to increase in the temperature. The membrane will rupture and person will start bleeding because it's a very weak membrane. Kesselbeck plexus is having a very weak membrane and person will start very easily bleeding
So this is the cause for epistaxis. The next is joint bleeding causing pain, tenderness, swelling and limited range of motion. So यहाँ डिजीज ब्लीडिंग वाला प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग होगी, बस वही सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, abnormal ब्लीडिंग मिलेगी. नॉर्मली कट लगने के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, यहाँ पे कट लगने के बाद ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी. पर्सन लव टू ब्लड देखता रहेगा, हाँ आ रहा है, नहीं रुक रहा है, आ रहा है, आने दो, हीमोफीलिया है, होगा. Whenever we are going for a surgical procedure in any type of hemophilia patient, our responsibility is, what is our responsibility? क्या responsibility? So our responsibility is to check the sufficient amount of clotting factors available in your operation theater or in the patient body. Before surgery, patient is transfused the factor 8 as well as the cryoprecipitates clotting factor plasma. हम पेशेंट को क्या लगाते हैं, सर्जरी से पहले लगाते हैं ताकि बॉडी में उनका लेवल इंक्रीज हो जाए. एज वेल एज ड्यूरिंग सर्जरी वी आल्सो ट्रांसफ्यूज द क्लोटिंग फैक्टर और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स और एसडीपी और क्रायोप्रेसिपिटेट्स टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग. तो इनका नंबर जो है वो एडिक्वेटली आपके पास क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए पहले से. ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी. एंड द क्रायोप्रेसिपिटेट्स और द अदर एसडीपीज आर, जो होते हैं इनको हम हमेशा फ्रोजन फॉर्म में होते हैं. दीज आर इन फ्रोजन फॉर्म. फ्रोजन जानते हो, फ्रीज किया हुआ. ये हम स्टोर करते हैं माइनस में करते हैं, प्लस में माइनस टेम्परेचर 40, इट्स -140 डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करते हैं, इनको स्टोर करते हैं. और जब आप इनको इतना माइनस में स्टोर करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका लाइक मुझे प्लाज्मा चाहिए, अभी एफएफपी चाहिए, फ्रीज फ्रोजन प्लाज्मा, आपने चढ़ा सकते हैं -40. सो -40 टू -140 लाइक इन केस ऑफ बोन मेरो, इट्स एब्सोल्यूट. जो फ्रीज फ्रोजन प्लाज्मा है, एफएफपी है, क्रायो है, वहां पे -40 है. इन बोन मेरो फ्रोजन जो हम याद रखते हैं, मेरे को बोन मेरो याद, उसमें -40 हम टेंपरेचर यूज करते हैं. -40 टू -140 इज इन फॉर बोन मेरो स्टोरेज. स्टेम सेल्स हम स्टोर करते हैं, इन दैट वी विल यूज -140. सो ब्लड के लिए -40 एंड बोन मेरो के लिए -140. सो वहां पे मैं तो रिस्पांसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है? क्या फ्रोजन जो पड़ा है -40 का -1 पे भी होगा, वो भी फ्रीज रहेगा बर्फ की राइस की तरह. माइनस में जाते क्या हो जाएगा, फ्रीज. अब आपकी क्या, आपको ब्लड आप पेशेंट को लगाना है, आप ब्लड बैंक को कॉल किया, दे दो, उन्होंने दे दिया, ये लो. अब क्या करोगे, गर्म पानी में दबाल के लाओ जल्दी से, हैं क्या करेंगे? अरे वार्मर से कोई बर्फ पानी बनेगा क्या? हमें तो देना है अभी. So always remember, whenever we are going for any surgery with hemophilia, the blood bank person is informed before starting the surgery. सर्जरी से पहले ब्लड बैंक वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम इस पेशेंट की सर्जरी इस तारीख को करेंगे. We will performing a surgery on this day and patient is suffering with hemophilia. So they people already ready for the release of these things. जो भी एफएफपी और जो भी होगा वो पहले से ही उसको क्या करेंगे, जो आपका नॉर्मल फॉर्म है उस पे कन्वर्ट करके रखेंगे. उसको पहले से बाहर निकाल के नॉर्मल फॉर्म में डाल देंगे और उसको फ्रीजिंग फॉर्म से जो ब्लड फॉर्म होता है उसमें चेंज कर देंगे. बस पॉइंट ये होगा कि अगर वो यूज नहीं होता है, इफ इट इज नॉट यूज्ड, देन उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा. आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम फ्रोजन फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म, इट विल नेवर बी यूज्ड, और आगे बाद में वापस यूज नहीं किया जा सकता. उसको फिर से फ्रोजन करके यूज नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा. तो एक बार करने के बाद पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना होगा. नेक्स्ट, तो पहले बता के रखना है 2 घंटे पहले. डायग्नोसिस, सो पीटी बीटी या फिब्रिनोजन लेवल, ठीक है, तो देख लेंगे. पीटी यानी प्लेटलेट, पीटी व्हाट इज पीटी? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, फिब्रिनोजन लेवल, प्लेटलेट काउंट, एज वेल एज फैक्टर 8 ऐसे, फैक्टर 9 ऐसे, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. ये सारा हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप लिख लो क्विकली. पता नहीं कौन है बार बार कॉल कर रहा है. देखिए, सो डायग्नोसिस इज वेरी इजी. ऑल द कॉग्निशन स्टडीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था. वी विल गो फॉर ऑल द कॉग्निशन टेस्ट लाइक ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्लेटलेट, ये सॉरी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपिडिटी, प्लेटलेट काउंट्स, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ऐसे, ये सारा हम असेस करेंगे. और अगर इनका लेवल लो मिलता है, फैक्टर 8 फैक्टर 9 का लेवल जो हमने अभी लिखा था 50 to 150% और 70 to 120%, दिस वी चेक इन ब्लड. नेक्स्ट, क्लियर है ये, देखिए. नेक्स्ट, मैनेजमेंट. अगर हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट, तो देयर इज नो पॉसिबल मैनेजमेंट इज देयर. हेमोफीलिया इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम एंड नो पॉसिबल मैनेजमेंट इज देयर. ओनली द प्रिवेंशनल मैनेजमेंट, यू जस्ट प्रिवेंट फॉर एनी टाइप ऑफ कट. अपने आप को कट लगने से बचा के रखें, दैट इज ओनली द मैनेजमेंट. मेडिकली हम डिजीज को क्योर नहीं कर सकते, क्योर ऑफ द डिजीज इज नॉट पॉसिबल. डिजीज को ठीक करना पॉसिबल नहीं है. सो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट. और इसमें आप क्या करेंगे, सो एप्लीकेशन ऑफ आइस, आइस विल कॉज vasoconstriction and vasoconstriction lead to decreased bleeding. So apply for 15 minutes for superficial bleeding. The next is aspirin is contraindicated into hemophilia. Why? Because aspirin is an anti-platelet drug. Anti-platelet drug. Already person is having bleeding problem, and if you block the platelet function, थोड़ा बहुत जो क्लोटिंग की वजह से पहले से ही प्रॉब्लम है, क्लोटिंग नहीं होती है और प्लेटलेट थोड़ा बहुत प्लग फॉर्मेशन करेगा, उसको भी आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में और ज्यादा कंडीशन वर्स हो जाएगी. तो एंटी-प्लेटलेट ड्रग्स, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और एनी अदर ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद हेमोफीलिया. नेक्स्ट, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर रिप्लेसमेंट फैक्टर. अभी बताया मैंने, क्रायो, एसडीपी, एफएफपी, फैक्टर 8, ये सारे हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा टू ट्रीट सम टाइप
of hemophilia, cryoprecipitate, monitor urine for hematuria. A person is having internal bleeding or internal hemorrhage, then person will have hematuria, like bleeding is present in your bladder or in kidney, then person will have the hematuria. यूरिन के साथ में क्या आएगा, ब्लड आएगा, तो उसके लिए भी आप मॉनिटरिंग करते रहेंगे. The next is, देख लिया, मूव करें. Monitor urine for hematuria. Hematuria is a classical presentation of which kidney disease? There is two diseases, at least you keep in your mind. One is nephrotic syndrome and second one is nephritic syndrome. One is nephrotic, one is nephritic, glomerulonephritis and nephrotic syndrome. In which disease person will have hematuria? कौन सी disease में? Nephrotic syndrome and glomerulonephritis. So classical presentation of hematuria in which disease? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया. कोला कलर यूरिन present in which disease? In nephrotic, in both disease. So nephrotic syndrome is a disease which is classically present with proteinuria, massive proteinuria. But in case of nephritic syndrome or glomerulonephritis, both are same. Nephritic syndrome or glomerulonephritis, the disease is present with mild proteinuria with the classical presentation of hematuria, कोला कलर यूरिन आपको देखने को मिलेगा. glomerulonephritis में, nephritic syndrome में यूरिन के अंदर कभी भी ब्लड नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? We'll discuss later on when we discuss about the renal system. Next, वो करें, आगे लिख लिया. Next, oh, it's a something different. DDAVP. What is DDAVP? एक बार इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया था. DDAVP का एक फुल फॉर्म आया था एक बार एग्जाम में. So it is a one diamino. It's DI, not DE. It's DI. Diamino 8 D-arginine vasopressin, a synthetic form of vasopressin, increases plasma factor 8 and may be prescribed to treat mild hemophilia. So hemophilia के मैनेजमेंट के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं? DDAVP, 1 diamino 8 D-arginine vasopressin. It's a DDAVP क्या है? It's a type of vasopressin, but it is a synthetic form of vasopressin, and it also help in the stimulation of the formation of factor 8. तो हेमोफीलिया में फैक्टर 8 की कमी है और वहां पे ट्रीट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं. इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ, एक मैंने परसों ही बोला था वॉन, याद है? याद नहीं है? ये वॉन आ गया. वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर बाय एंडोथेलियल वेसल्स के एंडोथेलियम स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ वॉन विल्ब्रेंड्स एज मींस एंटीजन फ्रॉम द प्लेटलेट एंड सेल्स दैट लाइंस द ब्लड वेसल्स वेयर इट इज स्टोर्ड. ये जो भी लिखा है मैं अभी पूरा अपना बना के साथ समझाऊंगा पूरा एक बार. वॉन विल्ब्रेंड्स एंटीजन इज अ प्रोटीन दैट कैरीज फैक्टर 8 and increase in the von Willebrand's antigen and factor 8 level, this will stop the bleeding. तो ये क्या कहना चाह रहा है अभी हम इसको हमारी स्लाइड पे समझते हैं. इसलिए समटाइम एग्जाम में वॉन विल्ब्रेंड डिजीज के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है. वॉन विल्ब्रेंड डिजीज, सो इट इज आल्सो रिलेटेड टू हीमोफीलिया और फैक्टर 8 डेफिशिएंसी. हाउ? पहले समझ लें या पहले लिखोगे? लिखने दो सर, आप बाद में लिखोगे. लिखना जरूरी है आपके. पहले लिखना कब बंद करोगे आप लोग? आप एक दिन ऐसा हो कि आज सर लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ पढ़ाओ हैं, फिर उस दिन मैं भी कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा बना बना के. इससे वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर, सो सिंपली आपको क्या देना है? DDAVP देना है. 1 डाइएमाइनो 8 डी आर्जिनिन वैसोप्रेसिन. DDAVP जो है आपकी बॉडी में जाएगा और ये क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. व्हेन द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल इज स्टिमुलेटेड, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक फैक्टर व्हिच इज नोन एज वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर. वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर. अब उसके बाद क्या होगा देखें. वो करें. so, क्या करते हैं इसमें देखिए, आप समझे इसको पहले. दिस इज द DDAVP. क्या ये? 1 डाइएमाइनो 8 डी आर्जिनिन वैसोप्रेसिन. दिस इज द DDAVP. इट्स अ ड्रग, इट्स अ सिंथेटिक वैसोप्रेसिन. ये ड्रग आप जब देंगे तो ये ड्रग कहां जाके एक्ट करेगी? एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल. जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लाइनिंग है वहां जाके एक्ट करेगी. बाइंडिंग ऑन दिस एंडोथेलियल लाइनिंग स्टिमुलेट देम एंड synthesis or production of which factor? One Willebrand factor. Now when this factor is present in your blood, ये फैक्टर जब आपके ब्लड में आएगा तो ये फैक्टर जाके किसको स्टिमुलेट करेगा?
प्लेटलेट को स्टिमुलेट करेगा, दिस विल स्टिमुलेट द प्लेटलेट. When these platelet are stimulated, the platelet will produce a specific antigen or protein. ये क्या करेगी, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा, प्रोड्यूस करेगी, सिंथेसाइज करेगी प्रोटीन. एंड इस प्रोटीन के अंदर क्या होता है, वन विलब्रेंट एंटीजन. इस प्रोटीन पे क्या होता है, वन विलब्रेंट एंटीजन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा. ये जो प्रोटीन होगा, इस प्रोटीन लाइक दिस इज द प्रोटीन. ऑन दिस सरफेस ऑफ द प्रोटीन हियर वी हैव अ फैक्टर व्हिच इज नोन एज फैक्टर 8. सो इस प्रोटीन के रिलीज से आपको क्या मिला, फैक्टर 8 मिला ब्लड के अंदर. और ये जो फैक्टर 8 जो ब्लड में डेफिशिएंसी थी फैक्टर 8 की, उस पे क्या करेगा, इंक्रीज लेवल ऑफ फैक्टर 8. एंड जब 8 का लेवल बढ़ेगा तो आपकी ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. सो दिस इज द कांसेप्ट सिंपली जो आपको याद रखना है. रिलीज ऑफ वन विलब्रेंट फैक्टर, रिलीज ऑफ a specific protein which contain factor 8 and that factor 8 increase the level in your blood and stop the bleeding. So this is the theory. ये लिख लिया. नेक्स्ट, सो इसी के बारे में अगली डिजीज भी है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वन विलब्रेंट डिजीज. हेमोफीलिया क्लियर. इन सिंपल कुछ पॉइंट्स हेमोफीलिया के याद रखने आपको. वन इज द डिजीज हेमोफीलिया इज आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज और डिजीज ऑफ ब्लीडर डिजीज. Disease of royal person or the person who loves to blood, hemophilia. Disease described in 3 types: the factor 8 deficiency, factor 9 deficiency, and factor 11 deficiency. If 8 deficiency is there, type A, which is most common, and the classic disease, factor 9 deficiency, the B type of disease, and it is a Christmas disease. And in case of factor 11, it's a hemophilia C, which is the least type of disease. Mild chance of bleeding is there. Most common hemophilia A is there. It's a genetic problem, so the risk factor is related to genetics. Next, management. No possible management is there. Medical management, permanent management कुछ भी नहीं है. We will go for the वेरियस फैक्टर जो है वो आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं. वन ड्रग विच हेल्प यू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, दैट इज DDAVP. तो अगली बार ये ड्रग आएगी तो याद रहेगा, DDAVP, 1 डाई अमाइनो 8D arginine vasopressin is the drug. Next, one Willebrand's disease or VWD or angiohemophilia. Angiohemophilia, angio means vessel and hemophilia means hemophilia. So हमने अभी पढ़ा था वन विलब्रेंड जो फैक्टर है वो किसके रिलेटेड है, रिलेटेड टू कहां से आता है, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. और अगर ये फैक्टर की डेफिशिएंसी है मतलब आपका वेसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नेम क्या रखा है, एंजियोहीमोफीलिया, रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ द वेसल्स. वन विलब्रेंड डिजीज और एंजियोहीमोफीलिया. फर्स्ट, मोस्ट कॉमन हेरिडिटी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर इन ह्यूमन. हेरिडिटी या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ब्लीडिंग, जो ब्लड का क्लॉटिंग डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर. विलब्रेंड फैक्टर विच प्राइमरी फंक्शन इज बाइंडिंग टू अदर प्रोटीन एंड द हेमोस्टेसिस और द थ्रोम्बोसिस. याद है हेमोस्टेसिस पढ़ा था हमने, याद नहीं है? सो हेमोस्टेसिस, ड्यूरिंग हेमोस्टेसिस व्हेन द थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन इज ऑनगोइंग, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा था, प्रोथ्रोम्बिन का क्या बन रहा था, थ्रोम्बिन बन रहा था और उससे थ्रोम्बस बनेगा, पूरा क्लॉट बनेगा. उस क्लॉटिंग फैक्टर जो बनने के टाइम का जो प्रोसेस है, उस रिएक्शन के अंदर ये फैक्टर हेल्प करता है, जिसका नाम है वन विलब्रेंड फैक्टर. इट इज अ हेरिडिटरी एंड इट इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर. अभी भी कुछ याद आ रहा हो तो बता सकते हो. मैंने क्वेश्चन पूछा था, कुछ याद है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर. सो दिस यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दिया इन्होंने कि वन विलब्रेंड डिजीज इज अ टाइप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर. हेमोफीलिया अभी भी कंफ्यूजन में है, अभी भी आपका चल रहा होगा कैसा डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग वाला या क्लॉटिंग वाला. तो वो कब आएगा आंसर, जब आप क्या समझ पाओगे व्हाट इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड व्हाट इज क्लॉटिंग डिसऑर्डर. तो अभी एंड हो रहा है, फिर आप बताएंगे. आप अभी सोच लिया सबने आंसर? हाँ अभी बताएंगे, थोड़ी देर में रुके फिर हम इसका आंसर समझते हैं. सो वी हैव वन मोर क्लास कल होगी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट क्लास बिफोर दिस नॉट दिस ESIC एग्जाम. और बिकॉज ऑफ यू पीपल इट इज पॉसिबल हुआ मेरे लिए भी कि मैंने भी क्या किया, ब्लड को रिवाइज कर दिया. बट तो पहले रखा है रिवीजन. बाकी मैं अगर ब्लड नहीं पढ़ा तो मैं ब्लड नहीं पढ़ता, रिवीजन नहीं करता. सो इट मे बी हेल्पफुल फॉर मी इन अपकमिंग एग्जाम. अगर ब्लड का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं कोई क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, या आप लोग भी बोल सकते हो हम भी नहीं करेंगे. करोगे? मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्वेश्चन वैसे, डोंट वरी. मैं सिर्फ आपके साथ पेपर लेने जाऊंगा, पेपर क्या पता मुझे भी दे दे, मैं नहीं देंगे तो लेके आ जाऊंगा चुपके से. मेरा कॉपी चेक नहीं होगा, क्या फर्क पड़ेगा. नेक्स्ट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वन विलब्रेंड फैक्टर. वन विलब्रेंड फैक्टर प्रोटीन आल्सो सर्व एज एन कैरियर प्रोटीन फॉर फैक्टर. बताया मैंने, कैरियर प्रोटीन फॉर फैक्टर 8. फीचर्स आर द एपिस्टैक्सिस, गम ब्लीडिंग, इजी ब्लीडिंग और समटाइम एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. और अभी बताया था मैंने, दिस इज द वन विलब्रेंड फैक्टर और इसके सरफेस पे क्या होता है, फैक्टर 8. तो ये इसके लिए क्या हो गया, फैक्टर 8 के लिए कैरियर हो गया. इट्स अ कैरियर फॉर फैक्टर 8. वो करें, लिख लिया, बहुत दिन हो गए ना. So we are about to finish this blood topic. We have one blood disorder related to white blood cell, leukemia. सुना है? Leukemia, disease of white blood cell. लिख लिया? Epistaxis, gum bleeding, easy bruising
बहुत जल्दी ब्लड आ जाता है, और इधर जाने के लिए तो रास्ता ही नहीं है। इधर हवा आती है, नहीं आती है, ऊपर ऊपर से चली जाती है, तभी इधर जगह है, यहीं तक है। लिख लिया? लिख लिया? When we are asking to share your pictures, we will share the picture which you looks आपको क्या लगता है जो सबसे क्या है होता है, जब शादी होती है, शादी से पहले एक रस्म होती है, इसको बोलते हैं फोटो भेजने वाली रस्म। फोटो भेजो बायोडाटा के साथ में, है? मेरे को बोला फोटो भेजो बायोडाटा के साथ में, मैंने कहा बायोडाटा तो बनाया नहीं अभी तक, और फोटो कभी खिंचवाई नहीं। बाकी मैं हूं तो देख लो, आपकी इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी चल रहा है काम, तो अभी हो ही रहा है, क्या कर रहा है, कोई फोटो नहीं है। सो जब आपसे पूछे ऐसे फोटो के लिए, तो यू सेंड द पिक्चर विच यू आर अज्यूमिंग दैट यू लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल इन दैट पिक्चर, जिसमें सबसे लगता है वो पिक्चर आप सेंड करते हैं। इस पोस्टर में आप देखोगे एवरी पिक्चर विच साइड फेस ओनली, ऐसे देखते हुए। यस, no one look as beautiful as their Insta or Facebook profile, or no one looks as real as your Aadhaar card picture. If you really want to get married with a person, you just ask to share the original PDF copy of your Aadhaar card. आप उससे पूछिए कि आप अपना आधार कार्ड का कॉपी भेजें, वो भी PDF फॉर्मेट में पासवर्ड के साथ में, और अपना भी भेजें, उससे आप डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर पाएंगे, और पिक्चर तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले मैच कर ही लेंगे, और आप फर्स्ट व्यू में क्या करेंगे, रिजेक्ट। नेक्स्ट, आगे क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लियर है? सो दिस इज द एंड ऑफ ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जो भी आप कहना चाहें, ब्लीडिंग हो या क्लॉटिंग हो, you are still confused, you don't know about the difference between bleeding and clotting disorders, and today I will also not clear these two factors, these two conditions, आपको ही क्लियर करनी है घर पे, और नहीं आती तो फिर हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिखिए आप, डिजीज, द लास्ट डिजीज ऑफ द सिस्टम, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज रिलेटेड टू ल्यूकोसाइट, ल्यूकेमिया इज रिलेटेड टू ल्यूकोसाइट, ल्यूकेमिया, मिया इज रिलेटेड टू the when something is less, तो उसके हम पीछे वर्ड लगाते हैं MIA, so it's related to leukemia is related to less और abnormal leukocyte। so जब हम leukemia की बात करते हैं, it's a disease of leukocytes or white blood cell, but it should be clear that it is a disease of precursor cell of or the premature cell of white blood cell, it is not a disease of mature white blood cell, it's a disease of premature white blood cell। definitions में याद क्या रखना है, leukemia is a disease of premature or the precursor cell of leukocytes, याद है leukoblast, it's a leukoblastic disease, it's not a leukocytic disease, it's a blastic disease, premature cells। so in case of leukemia, the person will have high number of increased number of white blood cell। जब आप देखेंगे leukemia में क्या मिलेगा आपको, white blood cell का काउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेगा। if somebody asks you in your body you have increased number of white blood cell in other condition also, like if you have an infectious condition, if you have inflammatory process, or if you have a parasite infection, allergic reaction, your white blood cell will increase, yes or no? so how you differentiate the leukemia and other increased number of white blood cell, leukemia में भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। so in leukemia the cell which is increased are premature cells, but in other conditions the cell which is increased that is mature cell। यहाँ पे कौन सा सेल इंक्रीज हो रहा है इन्फेक्शन में, mature cell। this is the first difference to differentiate these two conditions। in case of leukemia it's a malignancy, so this increased number of white blood cell can be divided into two types, one is reactive proliferation, reactive proliferation, and second one is neoplastic proliferation, neoplastic proliferation, reactive proliferation and neoplastic proliferation। reactive proliferation means when the number of white blood cell which is increasing in our body because of any immune reactive response due to the increase white blood cell due to infection or any allergic condition or any inflammatory reaction, इनकी वजह से white cell बनता है, उनको हम क्या बोलते हैं, reactive proliferation। but when the white blood cells level are increasing and this is related to neoplasm or the neoplastic condition, neoplastic is related to bone marrow, plastic बढ़ाती क्या है, bone marrow। so when a bone marrow is increasing the white blood cell which is an increase in the body in abnormal condition or abnormal size and shape, that is known as neoplastic proliferation। so on basis of these two, tomorrow we'll discuss about neoplastic proliferation which lead to leukemia, and sometime it will cause lymphoma also। so I will differentiate between leukemia and lymphoma in detail in next class tomorrow, and you have to study about two terms, that is bleeding disorder and clotting disorder। I will give you clear concept about the bleeding disorder and clotting disorder in next class tomorrow।